Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Disease. Disease is very dangerous for this time. And what is the disease? The first question in your mind, what is the disease? The disease any is a malfunction functioning the process which interfere with the normal functioning of the body is called disease. The disease is a normally functioning of the body, their process interference. There is a called disease. In other words, disease may be defined as the disorder in the physical, psychologically, and physiologically or the social state of person causing the nutritional deficiency. Is a physiologically disorder, genetical disorder, and pathogen are other reason. There are disease. The disease is just understand what is the disease. The disease is here the physically, psychologically, physically, and socially state of person causing the nutritional deficiency is a physiologically and disorder, genetic disorder, pathogen is a other reason. There are disease. The disease is a types here. Disease types there is also the flow chart here. A classification of human disease. The disease here is a two types: is a congenital disease and the acquired disease. The congenital disease is a present of sign of birth, but acquired disease is a developed after birth. There is a congenital disease is the present of birth time, but is acquired disease is the after the birth. There is the acquired disease is divided by the two types is the communicable disease and non-communicable disease. The communicable disease is a spread from the infected person to the healthy person by the air, water, food. But non-communicable disease is do not spread from diseased person to healthy person. There is a different types of air communicable and non-communicable disease. The here is a non-communicable disease is divided by the is a five other types. Is a hair of non-communicable disease is the first is a degenerative disease causing due to the is a malfunctionings is a vital body organ, and second is a deficiency disease is a causing due to the lack of nutrition diet, and third is a allergies. Allergies is a causing due to the hypersensitivity in the body's content of organ substance like a dust and other things. And the cancer is the causing due to the uncontrolled growth of cell and tissue that is causing of cancer. And other disease is a due to the various physical agent any other reason. There is a five is the types of non-communicable disease. Here there is a do not spread of disease person to other healthy person. Here is a congenital disease. There are congenital disease here, the disease which is a present from a birth. There is a congenital disease here, a present of the birth. An example, hole is the heart of infant. There is a hole of the heart in infant, and they are caused by some genetical abnormality or metabolism disorder or functioning of organ. There is the second is a acquired disease. Acquired disease here, this disease which may be occur after birth during one lifetime. There is a causing the lifetime disease. This acquired disease may be generally be classified into the infection disease. The first here, infection disease, and the disease which can be transmitted from the disease healthy person to a disease, and the degenerative disease. There is the next here, a degenerative disease. The disease is causing by the malfunction of some vital organ of body. This example is a heart failure. The next here is a deficiency disease. The deficiency disease, these are causing due to the nutritionally deficiency such as that of minerals and vitamins in the diet. As example, anemia. The anemia is a Fe iron, the berry is a vitamins B. You have read about their disease in the earlier 27th chapter. And their cancer. Cancer is very dangerous. This is a abnormally uncontrolled and unwanted growth of cell. There is a cancer is abnormal, uncontrolled, and unwanted growth of cell. It is called the cancer. The cancer is a mostly is a so here is a breast cancer. The breast cancer is a very dangerous for the human. The next is acquired disease are studied under two category. There are communicable disease. The communicable disease here, the disease which can be transmitted from to an infected person to the healthy person here,
and the non-communicable disease. This disease do not spread from one affected person to the healthy person. You understand? Is a communicable disease. There is a spread by the healthy person to the other healthy person by through their air, water, and the food. There is a communicable disease. And non-communicable disease here. This disease do not spread from one affected person to the healthy person. The here tables show there are communicable disease and non-communicable disease a difference. The difference is a communicable and non-communicable disease. The first is a communicable disease causing by some biological agent or pathogens such as virus, bacteria, protozoans, and helminths and the worm. And there's the next is a non-communicable disease. There is a causing due to the some specific factor such as malfunctioning of some vital organ and deficiency of nutrient. So, and the communicable disease here is spread from one person to another person through contact of water, air, and food, and etc. And their other sides, the non-communicable disease, do not spread from to person to another person by the contact. There is a non-communicable disease. And the communicable disease here, the concern there are disease involve the society as these are related to the community health. But non-communicable disease here is a concern of the disease is restricted to individually only. So here show the mode of spread of communicable disease. There is a communicable disease spread from to infected person to healthy person in the following way. The first is a direct transmission. The direct transmission is the pathogens of disease infect a healthy person direct without any intermediate agent. It can be take place by the various means such as a direct contact between the infected person and healthy person. The disease like a smallpox, chickenpox, syphilis is a gonorrhea spread through the direct contact. There is a direct contact disease meant a communicable disease as a here. The next here is a droplet infection. The infection person throw out their tiny droplet of mucus by the coughing, sneezing, spitting. This is a droplet may be contain the pathogen by their inhaling their air containing of droplet. A healthy person may be get an infection. Disease like a common cold, pneumonia, influenza, measles, and tuberculosis, and the whoopings cough spread through the droplet infection. There is a call to droplet infection by the coughing, sneezing, and spreading of mucus. There is a next here, third point is the contact with the soil. The contaminant with the disease causing viral and bacterial. There is a contact with the soil, there is the viral and bacterial. And the next here is the animal bite. The animal bite is a viruses of rabies introduced through their wounds causing by the bite of rabbits animals, especially dog. Their bite is present in the saliva of the rabidal animals. The next is the indirectly transmission. The indirect transmission here, the pathogen of contained disease reach the human body through some intermediate agent. It can be take place by the various means, which is the following. There is a first is a by vectors such as the houseflies, mosquitoes, and cockroaches. Example, housefly carry the causative organ of the cholera is their legs and the mouth part from the feces of sputum of infected person to the food and drink and the contaminate them. When the contaminated food is taken by the healthy person, we get infections. And similarly, a mosquito carry a virus of dengue and malaria parasite which are causing of malaria. There is the by vector such a is the housefly, mosquito, and cockroaches for a year. And the next is a airborne. The airborne here, the pathogen may be reach the humans with the air and dust. There is airborne disease here. There is a rich human with the air and dust. The epidemics thefts spread by the inhalation of dry face of infected fly. The next is the object borne. Yani Fungus borne is many disease is transmitted through the use of contaminant articles such as cloth, utensil, toys, door handles, tap, syringe, and surgical instrument. Is objective borne. That this time is obviously born is a disease is a common is a here a coronavirus. There is a spread from the cloth, toy,
door handles, taps, syringe, surgical instrument. There is a spread disease is a coronavirus. And waterborne here, it is a potable water drinking is a contaminant with their pathogen of disease such as a cholera, diarrhea, hepatitis, and jaundice. It is a reach the healthy person upon consuming such a water. There is a waterborne disease. Friend, you remember that the waterborne disease is a cholera is a common and diarrhea, hepatitis and jaundice is the most common for children. There is no drinking of water, but there is a spirit for the is a contaminant water drinking. दोस्तों यहाँ पर जो हम बात अब करने जा रहे हैं वो रोग क्या है। देखिए रोग होता क्या है, रोग होती क्या है, रोग से आप कैसे जो है दो चार हाथ करती हो। कहते हैं रोग जो होता है कोई भी स्थिति जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा पहुंचाती है। अगर कोई कार्य आप करना चाहते हो लेकिन वो करने में सक्षम नहीं हो तो इसका मतलब आपको किसी प्रकार की बीमारी हो रखी है। कहते हैं ये रोग कहलाता है, चाहे बेशक लिए आप आलस्य के शिकार क्यों ना हो। आलस्य भी एक तरह का एक रोग होता है जो इंसानों में पाया जाता है। कहते दूसरे शब्दों में रोग को पोषण की अल्पता, शरीर क्रियात्मक अव्यवस्था, अनुवांछित गड़बड़ी और रोगजनक या किसी अन्य कारण से भी उत्पन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और जो है समाज स्थिति में व्यतिक्रम हो कहते हैं। यानी आप सिंपली अगर देखा जाए रोग क्या है तो आप ये भी लिख सकते हो कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और जो है समाज स्थिति की जो है व्यतिक्रम हो करते हैं, उसे ही हम रोग कहते हैं। अंग्रेजी में डिसीज़ का शाब्दिक अर्थ होता है विकार, यानी लैटिन जो वर्ड अगर देखा जाए डिसीज का मतलब होता है दूर, इसका मतलब है आराम, यानी सुख चैन, यानी सुख चैन का दूर या समाप्त हो जाना। यानी आपको पता है कि बीमारी जब भी किसी व्यक्ति को होता है तो उसका जीवन जो है हराम हो जाता है, उसको इवन खाना पीना भी पसंद नहीं आता है। तो समझ सकते हो कि हमारे जीवन को जो है आराम को ये जो बीमारी है तहस नहस कर देती है और हमें जो है कमज़ोर कर देती है। यह एक प्राचीन शब्दिक शब्द है डिसीज का से उत्पन्न है जिसका अर्थ है डिस अवे एज इज ईजी, यानी आराम सुख चैन का न रहना। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बीमारी जो है किसी भी व्यक्ति को सुख चैन जो है ख़त्म कर देता है, इसलिए इसका नाम जो है डिसीज़ रखा गया है। अगर बात हम यहाँ करें रोग के प्रकार के विषय में तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये जो होता है दो प्रकार की होती है। एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है उपर्जित रोग। यानी जन्मजात जो हम अपने जो है बचपन यानी माता पिता से ही प्राप्त करते हैं, यानी बच्चों को गर्भ में ही ये बीमारी हो जाती है तो उसको हम जन्मजात रोग कहते हैं। लेकिन एक उपर्जित रोग होती है जो जन्म के बाद विकसित होती है, जन्म के बाद जो ये विकसित होती है। अगर देखा जाए उपसर्जित यानी एक्वायर्ड डिसीज के बारे में बात किया जाए तो ये दो प्रकार की हो जाती है। एक है संचारी रोग, एक है गैर संचारी रोग, जिसको आप कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जान सकती हो। अगर देखा जाए संचारी रोग कम्युनिकेबल डिसीज तो संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में ये फैलता है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या भोजन हो, इसके थ्रू जो है ये बीमारी स्प्रेड होता है यानी फैलता है। ठीक है। और गैर संचारी रोग जो होते हैं ये फैलता नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कभी फैलता नहीं है। जैसे कि आप एड्स भी देख लो तो ये डायरेक्टली नहीं फैलता है, हवा वायु द्वारा नहीं फैलता है, किसी से हाथ मिलाने से ही नहीं फैलता है, इसलिए इसको हम गैर संचारी रोग कहते हैं यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। यानी ये डायरेक्टली नहीं फैलता है, एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे संक्रमित स्वास्थ्य व्यक्ति में नहीं फैलता है ये। अगर यहाँ पर देखा जाए तो गैर जो रोग होती है गैर यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो ये कई पार्टों में विभक्त हो गया है, कई पार्टों में बट गया है, जो कि 5 पार्ट यहाँ दर्शाया गया है। एक है व्यंज रोग, यानी शरीर के मुख्य अंगों सुचारू रूप से कार्य न करना, यानी शरीर कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है तो ये अपन जनन रोग कहलाता है। उसके बाद हीनता न्यूनता रोग, जैसे आहार में पोषक तत्व की कमी कारण होने वाली बीमारी को हीनता न्यूनता रोग कहते हैं। और तीसरी तो पॉइंट से आप भली भांति परिचित ही होंगे, एलर्जी। एलर्जी जो होता है किसी भी चीज़ पदार्थों के शरीर के अति संवेदनशील के कारण होता है, यानी किसी चीज़ के लिए आप संवेदनशील होते हैं। जैसे आपको पता ही है जिनको जो है सांस की प्रॉब्लम होती है उनको डस्ट से दूर रखा जाता है। उसके पश्चात है हमारे समझ कैंसर। देखिए कैंसर जो है आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है और ये बीमारी बहुत खतरनाक भी है, लेकिन फिर भी जो है आज इलाज होने के कारण ये जो है इलाज किया जा सकता है। तो कैंसर जो होता है कोशिका या उत्तकों की अनियमित वृद्धि के कारण, यानी कैंसर का मतलब ही होता है कि आप जो करते हो क्या कोई भी शरीर के अंग को इरिटेट कर देते हो, और जब कोई इरिटेट होता है तो अपने आप में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने लग जाता है और उसके शरीर की कोशिकाओं का जो है वृद्धि हो जाता है, तो ये कैंसर के रूप में आपको नज़र आती है। अगर अन्य रोग की बात करें तो विभिन्न भौतिक कारकों या अन्य कारकों से होने वाले रोग इसके अंतर्गत आते हैं।
अब यहाँ पर बताया गया है कि जन्मजात रोग क्या है। तो देखिए, जो रोग जो जन्म के समय ही विद्यमान होते हैं बच्चों में, तो उसे जन्मजात रोग कहते हैं। उदाहरण तो अगर शिशुओं के हृदय में छेद है तो ये जन्मजात रोग कहलाएगा। यह रोग आनुवंशिक या उपचारिक गड़बड़ी अथवा किसी अंग के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसे जन्मजात रोग कहते हैं, क्योंकि माँ के जो है गर्भ से ही जो है बीमारी आई है, इसलिए इसको जन्मजात रोग कहा जा सकता है, चाहे वो रोग अनुवांशिक क्यों न हो। कहते हैं उसके बाद उपार्जित रोग, यानी ये रोग जो होती है जब बच्चे जन्म ले लेते हैं, जब दुनिया में जीने लगते हैं, तब जाके ये जो होता है रोग हो जाती है। ये रोग जन्म के बाद किसी व्यक्ति को जीवन काल में हो सकता है। तो ये जो है आप स्वयं ही अर्जित करते हो इस रोग को। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो उपसर्जित रोगों के सामान्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है संक्रमण रोग। देखिए, संक्रमण रोग जो होती है, जो रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे जो है स्वास्थ्य व्यक्ति में संचालित हो जाती है, इसे हम संक्रमण रोग के नाम से जाने जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। एक जो है रोगग्रस्त व्यक्ति से जो है स्वास्थ्य व्यक्ति में संचालित होने को ही हम संक्रमण रोग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है खसरा है। खसरा जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। उसके बाद है हर्ष के कारण उत्पन्न रोग। देखिए, ये रोग किसी प्रमुख अंग के सुचारू रूप से कार्य न कर पाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। और उदाहरण देखा जाए हृदयपात यानी हृदय गति का रुक जाना, तो ये जो होता है किसी अंग का कार्य न करना ही होता है इस बीमारी का कारण, जिसे हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए आगे हीनता जन्य रोग, यानी ये रोग जो है आहार में पोषक जैसे खनिज विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग, जैसे लोह तत्व की कमी के कारण जो है रक्तता या और विटामिन बी कमी के कारण जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो इसे हीनता जनन रोग कहते हैं। ठीक है, इसके विषय में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। उसके बाद है कैंसर। देखिए, कैंसर जो होती है ये कोशिका की असामान्य और नियंत्रित अवांछनीय वृद्धि होती है, तो जो कि बहुत काफ़ी खतरनाक होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसमें जो होता है कोई भी अंग को अगर आप इरिटेट करते हो तो वो 100% जो है कैंसर कोजिंग कर जाता है। अगर देखा जाए सामान्यतः आज के समय में जो है कैंसर रोग देखने को मिला है वो है स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, जो कि औरतों में पाया जाता है। गर्भाशय गीवा कैंसर भी अधिक मात्रा में देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो कि इन अंगों को जो है वो जो है लोग बहुत इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर होना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। अगर बात किया उपजर्दी रोग के बारे में, तो आपको पता ही है कि दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी उपसर्जित रोग जो है दो प्रकार की होती है, एक संचरणीय रोग होती है, गैर संचरणीय रोग होती है। यानी इसको सिंपल देखा जाए तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जाना जाता है। कहते हैं संचरणीय रोग वो रोग होते हैं जो रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में संचलित होते हैं, बाय थ्रू हो, कुछ भी हो सकता है। और गैर संचारी रोग जो होती है ये रोग जो है रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में संचलित नहीं होती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में। अब देखिए यहाँ से जो है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में जो है हम टेबल में अंतर देखेंगे, क्या अंतर है। यहाँ पर जो है एक टेबल है दोस्तों, जिसमें संक्रमण रोग और असंक्रमण रोग के विषय में बताया गया है। अगर संक्रमण रोग की बात करें तो ये किसी जैव कारक अथवा रोगजनक के कारण होते हैं, जैसे जो है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजुआ, कुम द्वारा ये बीमारी हो सकते हैं। अगर देखा जाए असंक्रमण रोग तो किन्हीं विशेष कारणों जैसे किसी मुख्य अंग के सुचारू रूप से कार्य न करना, पोषकों की न्यूनतम कमी के कारण ये बीमारी हो जाता है। यानी ये जो होते हैं हम स्वयं ही इसके कारक होते हैं। अगर देखा जाए संक्रमण रोग तो कहते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित जल, वायु व आहार एवं संपर्क में आने से ये रोग जो है फैलता है। लेकिन अगर हम देखा जाए असंक्रमण रोग की बात करें तो ये जो होती है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संपर्क द्वारा संचालित नहीं होती है, यानी संपर्क से ये बीमारी जो है नहीं फैलती है। अगर बात करें थर्ड तो ये सामाजिक चिंता का विषय है, क्योंकि ये समुदाय के पूरे स्वास्थ्य से संबंधित है। क्योंकि संक्रमण रोग जो है पूरे समुदाय के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि ये किसी को भी बीमारी हो सकती है। जैसे आपको समक्ष जो था कोरोना वायरस था, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को होता था तो सभी व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करते थे और इसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो ये बात आपके समक्ष समझने के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगी। अगर देखा जाए असंक्रमित रोग के बारे में तो यह केवल जो है व्यक्तिगत चिंता का विषय होता है, यानी अपना व्यक्तिगत चिंता होती है। अगर आपने खाने में पोषक तत्व में आहार में नहीं सम्मिलित किया तो आप स्वयं ही उस बीमारी के जिम्मेवार बनोगे, तो इसलिए ये व्यक्तिगत बीमारी होती है। अगर बात किया जाए संचारी रोग के फैलने के तरीके के विषय में तो आपको तो पता ही है कि इसको दो रूप से फैलता है, सीधा यानी एक सीधा, एक प्रत्यक्ष संचरणीय रोग। यानी कहा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है डिसीज़ के रूप में आपके समक्ष रहेगा। ठीक है, यानी सीधा और प्रत्यक्ष संचरणीय रोग।
कहते हैं रोग जो बिना मध्यम कारक सीधे ही एक स्वस्थ व्यक्ति से संक्रमण उत्पन्न करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला बताया गया है आपके समक्ष। इसमें जो होता है संक्रमित व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य व्यक्ति के बीच सीधा संपर्क के द्वारा ये बीमारी फैलती है। जैसे चेचक, छोटी माता, सिफिलिस, सुजाक सीधे संपर्क से ये फैलते हैं। अगर बात करें हम बिंदु संक्रमण, तो इस संक्रमित व्यक्ति खांसते, छींकते, थूकते समय छोटे छोटे श्लेष्मा बिंदुओं को थूक कणों द्वारा लपेटों में बाहर छोड़ता है और इस बिंदुओं में जो है रोगजनक विद्यमान हो जाते हैं और इस बिंदुओं को जो है मुक्त वायु के सांस के साथ अंदर लेने के एक स्वास्थ्य व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। सर्दी, निमोनिया, फ्लू, खसरा, तपेदी, कुकुर खांसी बिंदु संक्रमण द्वारा फैलने वाली बीमारियों के कुछ नाम हैं। अगर देखा जाए मिट्टी में संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी की बात किया जाए, तो ये रोग जो है फैलने वाले विषाणुओं, जीवाणु आदि से जो है दूषित मिट्टी से संपर्क के कारण ये काफ़ी फैलता है। अगर बात किया जाए जानवरों द्वारा काटे जाने वाला जो बीमारी है, तो आपको तो पता है इसका कॉमन नेम तो है रेबीज ही है। रेबीज जो होती है बीमारी डॉगी के काटने की वजह से ही होता है। रोग से पीड़ित पशुओं या विविध कुत्तों के काटने से उत्पन्न घाव के माध्यम से रेबीज विषाणु प्रवेश पाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सिर्फ डॉगी का नाम लेना गलत साबित होगा। कहते हैं कोई भी पशु अगर आपको काटता है तो इससे जो है रेबीज होने की चांसेस 100% बन जाता है। इसलिए कोई भी जीव अगर आपको काटे तो इसका रेबीज का जो है उपचार करना आप मत भूलना, नहीं तो आगे चल के वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं अगर ये विषाणु जो होते हैं ये रोग पशु के लार में विद्यमान रहते हैं, यानी जो लार अगर बॉडी में लगता है उनका, तो वो बीमारी जो है हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके पश्चात है अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग, यानी इनडायरेक्ट रोग। देखिए ये जो है इनडायरेक्ट है, पहले हमने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रोग के बारे में विषय में पढ़ा, अब जो है अप्रत्यक्ष रोग के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कुछ रोगजनक माध्यम में जो कुछ माध्यम कारकों द्वारा पहुंचाते हैं, यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे समक्ष पहला तो नाम यही आया है, सबसे बड़ा जो एजेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट में, वो है घरेलू मक्खी। देखिए मक्खी जो है कई बीमारियों के एजेंट माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मच्छर आता है और उसके बाद तिलचट्टा आदि रोग वाहक द्वारा आते हैं, ठीक है। तिलचट्टा का भी इसमें विशेष स्थान रहता है। अगर उदाहरण घरेलू मक्खियों की बात किया जाए तो इससे जो होता है जे के कारण जीवाणु संक्रमित व्यक्ति से मल एवं थूक के अपने टांगों एवं मुंह में लेकर जो है भोजन एवं पेय पदार्थों की प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके भोजन पे मक्खी बैठा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप एक नए बीमारी के सुचालक बन रहे हैं। आगे जो है वो बीमारी आप में स्प्रेड कर जाएगी, क्योंकि इनके ये जो होते हैं मक्खियाँ होते हैं कई तरह के चीज़ों पर बैठते हैं और अपने टांगों में और अपने जो है मुंह में कई तरह की बीमारी जो है साथ में लेके आते हैं। अगर जनरली आप सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर वो मल मूत्र पे बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि मल मूत्र भी उसके बॉडी में अटैच हो गया है। अगर वही भोज्य पदार्थ पे बैठता है तो वो दूषित तो होगी, इसमें कोई बड़ी बात और समझने की बात नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए रखता है। कहते हैं अगर ये दूषित आहार एक हम स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार मच्छर डेंगू विषाणुओं से के वाहक होते हैं, वह मलेरिया परजीवी के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। अगर बात किया जाए आगे वायु वाहित यानी एयरबॉर्न डिसीज़ के बारे में, तो वायु द्वारा ले जाया गया बहुत से बीमारी हो सकती है। कहते हैं मानव शरीर में रोगाणु वाहक धूल कणों द्वारा भी पहुंच सकते हैं, जैसे जनपदित महामारी जो है टाइफास रोग या फिर एपिडेमिक टाइफस संक्रमित मक्खियों के शुष्क विस्फोटता और सांस द्वारा जो है अंदर लिए जाने से फैलती है। तो ये भी बीमारी जो है काफ़ी घातक सिद्ध हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आगे जो हमारे पास है बहुत वाहित यानी जो है फॉर्मेट्स बॉर्न यानी संक्रमित वस्तु वाहित। कहते हैं कई रोग जो है संक्रमित वस्तु है, जैसे कि वस्त्रों, बर्तनों, खिलौने, दरवाजे के हाथों, चले, सुइयों का शल्य उपकरणों आदि के माध्यम से संचलित होती है। कहते हैं फ्लाइटिस लेटिस भाषा में जो फेम शब्द का बहुवचन है, इसका अर्थ होता है बाहर को छोड़कर अन्य संक्रमित वस्तु जैसे बिस्तर, कपड़े आदि। देखिए ये बीमारी कुछ हद तक हमें जो है कोरोना वायरस को याद कराता है, जहाँ पर व्यक्ति को जो है अलग दूर रखा जाता था। इवन कि कपड़ा भी छूना में जो है वायरस आ सकता था, तो इसके लिए कोरोना वायरस जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर देखा जाए जलवाहित यानी वाटर बॉर्न डिसीज, तो वाटर बॉर्न डिसीज यदि पेप, जय, हैजा, दस्त, युकृत, शोध और पीलिया के जो रोग वायु से दूषित होते हैं, जो स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा जो है ऐसे जल को पिए जाने से ये रोगजनक स्वास्थ्य व्यक्ति तक पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जल से होने वाली बीमारियां कई है। आपने जो होगा जॉन्डिस के नाम सुना ही होगा, जो बच्चों में होता है, तो ये भी बहुत घातक सिद्ध होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ
remember, here is most important for the biology student. There are first here a pathogen. The pathogen means to the living organism which is causing a disease. There is a parasite on the organism which get a food and shelter from a host, and there are host, the living body on the inside which a disease producing organism take a shelter. And the infestation here the presence of a large number of parasitic organism on the surface body of the host on the clothing. The next here is a vector. The vector it is organism which is the hovers of pathogen and may be passed on other person to the cause of disease. Is a mosquito hovers malaria parasite are transmitted it to be humans. The next is a carrier. Carrier it is an organism which itself does not have words. They are a pathogen, but physically he is a transmit. It is another person. Is a housefly is a carrier of the cholera germ, and is a virus. Is a virus on the organism which hovers. Pathogen is a large number that do not cause any suffering to it. And the next era epidemics. Epidemics mean spreading of a disease among a large number of people causing a hoax, loss of life in the some place for a some time. Is a plague. Plague is the epidemic disease. And endemic. Endemic is the very easy. There are diseases which is regularly found among the particular groups of people. Example, Gothris restricted as a content locality of our country. There is the most important two word epidemic disease and endemic disease. Epidemic disease is a sometime there is a coronavirus a epidemic disease. There is a effect by the large number of people, and endemic disease is the mainly causing a one individual person. There is a Gothris restricted and there is all diseases. The next is pandemic disease. Pandemic disease are disease which are found all over the world. Example, AIDS. The AIDS is a pandemic disease. The next is the interferon. Interferons are types of protein produced by the infected cell of body, then attacked by a virus, which act to prevent of further development of the some virus. There is interference disease. And the next is the inoculations. Inoculations are inductions of there is antigenic materials inside the body to prevent of suffering from a disease. And the next year, a vaccination. Vaccination of injection of a weak strain of the specific bacterium. Vaccines are ordered to serums in immunity against the corresponding disease. It is also called to the immunizations. And the next era, incubation period. Incubation period, the period between the entry of pathogen inside a healthy body and appearance of the symptom of disease. And the next era, symptom. The symptom is a specific morphological and physiological expressions which is appear on the diseases organism help in the identification of the disease. That is called to the symptom. दोस्तों यहाँ पर बात आया है समर रखने वाली कुछ वर्ड। देखिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये शब्द जो है काफ़ी अमृत तुल्य है, क्योंकि यही शब्द जो है उनको याद रखना है लाइफ टाइम, क्योंकि आगे अगर उनको डॉक्टर बनना है जो भी है तो इस जो बातें हैं ये जो शब्द हैं उनको नोट कर लेना चाहिए। और ये शब्द जो है काफ़ी मानने में जो है चमत्कारी वर्ड के रूप में जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए हो सकता है। अगर देखा जाए सबसे पहला वर्ड जो है रोगजनक यानी पैथोजन। कहते हैं एक जीव जो दूसरे रोग उत्पन्न करने का कारण होते हैं उसे हम पैथोजन कहते हैं। अगर दूसरा देखा जाए परजीवी, परजीवी का अर्थ होता है पैरासाइट। देखिए पैरासाइट का मतलब होता है कि परपोषी जो भोजन एवं आश्रय प्राप्त करने वाले जीव होते हैं। अगर हम देखा जाए परपोषी तो उसको हम इंग्लिश में होस्ट कहते हैं। कहते हैं होस्ट जो होती है एक जीवित शरीर जिसके ऊपर अंदर या रोग जगत जीव आश्रय पाते हैं। जैसे आपको पता ही है कि कोई भी जैसे कि अमरबेल हो गया, ठीक है, जैसे हमारे जू होते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो होती है एक होस्ट के रूप में होती है। अगर हम देखें ग्रासन यानी इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन ग्रासन होता है। कहते हैं परपोषी के शरीर के सतह पर वस्तुओं में बहुत अधिक संख्या में परजीवी की उपस्थिति ही जो है इन्फेस्टेशन कहलाता है। यानी स्टेशन का मतलब जहाँ पर बहुत सारे चीज़ हों।
अगर अगला देखें वर्ड तो जो इसका मतलब है रोग वाहक यानी वेक्टर। वेक्टर जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको जो है हाउस फ्लाई यानी जो है घर की मक्खियाँ होती है उसके विषय में आप अच्छे समझ सकते हो। कहते हैं वह जो जीवो रोगजागों के आश्रय प्रदान करते हैं और अन्य व्यक्तियों के स्थानांतरित या संचार करने के लिए रोग उत्पन्न करते। उदाहरण जो है एनफिलिया नामक मच्छर जो मलेरिया को जो है परजीवी के आश्रय प्रदान करता है और उन्हें जो है मनुष्य में संचालित भी करता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है मच्छर का जो मलेरिया परजीवियों को जो है आश्रय प्रदान करता है उन्हें मनुष्य में संचालित करने के लिए उत्तरदायी होती है। उसके पश्चात है वाहक यानी कैरियर्स। देखिए कहते हैं यह एक जीव है जो स्वयं रोगजनक के आश्रय प्रदान नहीं करता है लेकिन शरीर रूप से दूसरे व्यक्ति में संचालित करता है। जैसे घरेलू मक्खी हो गया हैजा कॉलरा के रोगाणु जो है वाहक है, तो सारे जो है वाहक कहलाते हैं। अगर देखा जाए आश्रय यानी रिजर्व में मतलब यही होता है कि एक जीव बहुत से अधिक संख्या में रोगाणुओं का आश्रय प्रदान करता है लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होता है। रिजर्वायर्स कहते हैं इसको क्योंकि ये जो है दूसरे को कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, कहते हैं बहुत संख्या में रोगाणुओं के आश्रय प्रदान करता है लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होता है। अगर अगला देखा जाए तो जो है जनपादिक महामारी यानी एपिडेमिक जो होती है यह एक स्थान के समय और कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में फैलने वाली रोग होती है जिसकी काफ़ी लोग मर भी जाते हैं। उदाहरण प्लेग और अभी देखा जाए तो कोरोना वायरस की भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है एंडोडेमिक्स स्थानिक एपिडेमिक। देखिए वह रोग जो नियमित रूप से एक क्षेत्र या देश के विषय के एक समूह विषय में जो रोग के बीच पाया जाता है उसे जो हम क्या कहते हैं घिंगा, तो ये भी आ जाता है। अगर देखा जाए विश्वव्यापी का मतलब होता है जो हर एक देश में ये पाया जाता है, तो इसके लिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एड्स ही है। रोग जो विश्व के सभी भागों में पाया जाता है वो है एड्स जो है आज विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पे जो है रोग के कोई ना कोई आपको पेशेंट मिल ही जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं पैंडेमिक डिसीज यानी विश्वव्यापी बीमारी। उसके पश्चात आता है इंटरफेरॉन जो होती है दोस्तों एक जो है जीवाणु द्वारा संक्रमित किए जाने पर संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन का वह प्रकार है जो जीवाणुओं को अधिक परिवर्धन को रोकता है, तो ये जो है इंटरफेरेंस कहते हैं इसको। अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारा है निवेशन यानी इनकुलेशन जो होती है प्रतिजनित द्रव्य को शरीर के अंदर डालने की विधि ताकि व्यक्ति रोग से पीड़ित न हो, ये रोग होने से रोका जा सके, इसे हम टीका लगाना भी कहते हैं। उसके पश्चात है टीकाकरण। देखिए इसको कहते हैं वैक्सीनेशन जो होती है विशेष जो जीवाणु के एक दुर्बल प्रभेद के अंश का जो है इंजेक्शन जिसे रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है उसे हम प्रतिरक्षीकरण या प्रतिरक्षण भी कहते हैं, यानी इसको वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। तो ये टीकाकरण जो होती है कई बीमारियों से बचाने के लिए लगाई जाती है। उसके पश्चात अगर देखा जाए उद्भवन अवधि यानी इनक्यूबेशन पीरियड। देखिए इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब यही होता है कि किसी स्वास्थ्य शरीर में रोगजनक का प्रवेश व रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि, यानी कोई बीमारी अगर आपको हुआ है तो आपको कितना टाइम में जो है वो लक्षण दिखा रहा है, इसी को हम जो कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात है सिम्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि सिम्टम से ही हम बीमारी का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि व्यक्ति में कौन सा बीमारी है। कहते हैं रोगग्रस्त व्यक्तियों को प्रकट होने वाली विशेष अभिलक्षण आकार शरीर क्रिया संबंधी जैसे रोग को पहचान की जा सके लक्षण कहलाता है। तो दोस्तों पहले के समय में लोग डॉक्टर जो हुआ करते थे वो नब्ज पकड़ के ही बता देते थे कि इसको कौन सी बीमारी हुआ है और इसको कौन सा दोष हो रहा है, लेकिन आज के समय में जो है पैसे के धनाधोर के चक्कर में लोग जो है आज डॉक्टरी भी उसी तरह से कर रहे हैं जैसे आज की मांग है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सिम्टम नहीं देखते हैं, सिम्टम्स देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कोई भी बीमारी के लिए। So our next topic is communicable disease. It means infections of disease. There is a communicable disease here. Disease is which is the spread from disease is person to another through their contaminated food, water, contact and through the insecticide. An animal is called to the communicable disease. These are causing different or causative agent is a pathogen. There is a disease as causing by the virus. First of all, there are disease causing by the virus. There is the first here chickenpox. Chickenpox is here disease. The pathogen is a chickenpox virus is a varicella, and the mode of transmission by the contact by through the scabs. And there is the inclusion period is a 12 to 20 days. There is inclusion period here 12 to 20 days, and the symptom here. There is a symptom as a fever, headache, and the loss of appetite, and the dark red color rush on the back and the chest which is spread on the whole bodies, and the
letters is a rush and the change into the vesicle. There is a symptom of a chicken pox. And there is also is after few days there are vehicles started to dry up and the scab crushed and formed. There is a fifth one. These scabs started falling, infecting stays. There is the disease or main symptom, but prevention and the curve here. The curve here. This is a no vaccine against the chicken pox at here, and the but a precaution must be taken as a following. There first here, the patient should be keep isolations and clothing and utilized used by the patient should be sterilized and the foreign scab should be collected on bone and one attack of chickenpox give a lifelong immunity to be person recover from this disease. There is a most important feature here, the one time attack of chickenpox giving a lifetime long life immunity to be a person to recover for this disease. जो हमारा जो चैप्टर आया है, टॉपिक आया है, वो है संचारीय रोग। देखिए संचारीय रोग जो होती है संक्रमण रोग के नाम से जाना जाता है और इसको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ऐसे रोग जो एक जो है रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में दूषित भोजन, जल या संपर्क या कीटनाशकों, जानवर आदि के कारण फैलता है, उसे हम संचारीय रोग कहलाता है। ये विभिन्न कारकों द्वारा फैलते हैं, तो ये जो है इसे हम कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है विषाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले रोग। तो इसमें सबसे पहले तो आता है चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। इसका रोगजनक होती है छोटी माता विषाणु जो होता है वर्सीला होता है। वेरसीला जो होती है बीमारी का मेन रोगजनक होता है। अगर बात देखा जाए संचय रोग के तरीके, तो ये जो होता है संपर्क, खुरान, पपड़ी द्वारा जो है ये होती है, ये संचारी रोग होता है। अगर हम उद्भवन यानी अवधि देखें तो ये जो है 12 से 20 दिन तक भी इंसानी शरीर में जो है इंक्लूशन पीरियड देखा जा सकता है। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्वर आती है, सिर दर्द होता है, हर्ष होता है यानी भूख न लगना, इसके मुख्य लक्षण में से आते हैं। अगर देखा जाए पीठ व छाती से गहरे लाल रंग के दाने पित्तक जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, बाद में ये दाने पुटिकाएँ एक प्रकार का छोटा फोफला में बदल जाता है। तो ये बीमारी के मुख्य लक्षण आपको देख सकते हो। अगर देखा जाए कुछ दिनों तक ये जो है फोफले सूखने लग जाते हैं और जो है खुरा यानी पपड़ी बन जाती है। तो छोटी माता की वजह से तो बहुत सी बीमार हो जाते हैं। कई बार तो आइस के जो साइन है वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी आँख अंधा भी हो जाता है। कई तरह के फेलियर्स, बॉडी फेलियर्स में भी हो जाता है, तो ये बहुत घातक हो सकती है। कहते हैं ये खुरान गिरने लग जाते हैं और संक्रमित जो है अव्यवस्थित हो जाता है। अगर बात आया जाए यहाँ पर रोकथाम एवं उपचार के, तो कहते हैं अब तक छोटी माता कोई टीका हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो रोगों के अलग यानी एपिथेलियल पृथक्करण रखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहता है कि अगर छोटी माता से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको जो है अलग रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत फैलने वाली होती है। अगर देखा जाए वस्त्र, बर्तन आदि जो भी है सामग्री रोगों द्वारा जो है प्रयोग में लाई जा रही है, तो उन्हें जो है जीवाणु रहित यानी जो है गर्म रहित किया जाना चाहिए। यानी उसको जो है कुछ कैसे भी इसको धूप में रख के या कुछ ही तरह से जो है इसको साफ़ सुथरा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। गिरे हुए जो है खुरंड जमा करके जला दिए जाने चाहिए, यानी जो भी जो है खुरंड गिरते हैं उसको जमा करके जला देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है दूसरे को भी लगने के चांसेस बढ़ जाता है। छोटी माता को एक संक्रमित और परिणाम स्वरूप इस रोग को ठीक हो जाने वाला व्यक्तियों में इस रोग के प्रति जीवाणु प्रतिरक्षा क्षमता बन जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही बात बताई गई है कि मान लीजिए अगर जीवन में किसी को अगर छोटी माता हुई है या बड़ी माता हुई है, तो इसका मतलब है कि उनको जीवन काल में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद जो है हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। यानी एक बार हो जाने के बाद दोबारा आपको नहीं होगा। कहते हैं ये बात भी देखा गया है कि कहीं एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पर 2 बार भी ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बात सच्चाई है कि एक बार अगर आपको हो जाए तो ये लाइफ टाइम जो है इसके प्रति ह्यूमन सिस्टम जो है विकसित हो जाती है। जब भी ये बीमारी हमारे बॉडी पे अटैक करती है तो इसके जो है जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिस्टम होती है उस पर अटैक करके जो है उस बीमारी को नष्ट कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। The next disease is a measles. The measles is a pathogen, is a virus, is a rubella. Rubella is a pathogen virus. The mode of transmission is by the air. And there is incubation period here 3 to 5 days. There are 3 to 5 days is the incubation period, and there is symptom here a common cold. The first
symptom here is a common cold, and second is appearance of small white patches in mouth and throat, and there is a third is appearance of the rashes on the body. There is the next prevention and the cure here. The patient should be a keep isolations, and the cleanliness should be a maintaining, and there is antibiotics check only the secondary infection which can easily recur. अगर यहाँ पर बात किया जाए खसरा यानी मेजल्स बीमारी की, तो कहते हैं ये बीमारी जो होती है इसका रोग वाहक जो होती है वो विषाणु होती है, जिसको हम रुबेला नाम से भी जानते हैं। रुबेला जो होता है इसका विषाणु होती है, रोगजनक होता है, और ये जो संचरण की विधि होती है वायु के द्वारा फैलती है, यानी वायु के थ्रू जो है ये जो है खसरा बीमारी फैलती है। अगर देखा जाए इसको इंक्यूबेशन पीरियड यानी अवधि देखा जाए तो ये 3 से 5 दिन तक जो होता है इंसानों को परेशान करता है। अगर देखा जाए इसके लक्षण के रूप में तो ये जो है सर्दी जुकाम के रूप में जो है इंसानों में पाया जाता है, और ये जो होता है मुंह व गले में सफ़ेद छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं, तो ये जो है लक्षण देखने को आपको मिल जाएगा। कहते हैं शरीर में छोटे छोटे दाने का दिखाई देना भी जो यानी पित्तकाओं का भी दिखाई देना भी इसका मुख्य लक्षण में से एक आता है। अगर इसका उपचार की बात करें या रोकथाम की बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि रोगी को अलग रखना सबसे बेहतर तरीका माना गया है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्तियों को भी कंटामिनेट कर देगा, तो इसलिए जो है रोगों को अलग रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है रोगियों को। उसके बाद दूसरी बात यही आता है कि स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी साफ सफाई का जो है ध्यान रखना इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी बात देखा जाए तो यहाँ पर जो है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स दवाई लेने से केवल जो है द्वि संक्रमण को रोका जा सकता है, जो खसरे से पीड़ित व्यक्तियों का आसानी से हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोकथाम उपचार जो है आपको याद रखना चाहिए। Here the next disease is a poliomyelitis. Polio is a common disease in India, but there is a very important the poliomyelitis here. The pathogen is a poliovirus. The poliovirus is a pathogen, and the mode of transmission here, the virus enters inside the body through the food and the water. The polio transmission here are enter for the food and water, and there is an incubation period here 7 to 14 days. There is incubation period is 7 to 14 days, and they have symptom. There is a symptom the virus is a multiplies is a intestinal cells, and then the reach the brain through the blood. There is a symptom, and it a damaged brain and nerves are case the infinity of paralysis. There is symptom here the paralysis, and there stiffness of the neck, fever, loss of head support. There is stiffness the neck, fever and loss of the head support, and the prevention of cough here. The polio vaccines drop oral polio vaccines, yeah, means OPV, are given to children to the contain interval, and the pulse polio program is organized in our country to give a polio vaccine on a children. There is the most important prevention and cure here. यहाँ पर अगला बीमारी जो है जिसका नाम आप जानते ही हो, कई हफ्ताओं में और महीनों में जो है इसका लगाया जाता है, ठीक है। इसका जो है हर जगह कैंप्स लगते रहते हैं, तो आपको पता ही है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ पोलियो। तो ये पोलियो जो मेरुरज्जु स्रोत कहलाता है, इसको इसे पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं। पोलियो ये शब्द जो है पोलियो मेल्स से बना है, जिसका इट्स से बना है। मोल्स का होता है मज्जा को कहा जाता है, और इसका मतलब शोध होता है, यानी सामान्य शोध के सूजन यानी स्वेलिंग समझा जाता है। लेकिन यह अंग्रेजी शब्द इन्फ्लेमेशंस का पर्याय है, जिसमें सूजन सहित 4 अन्य लक्षण भी सम्मिलित होते हैं। अगर देखा जाए रोगजनक यानी पोलियो जो है विषाणु यानी पोलियो वायरस के रिगार्डिंग ये बीमारी होता है। अगर इसको संचलन की बात करें कैसे फैलता है, तो इसको फैलने का जो है मेनली कारण जो है विषाणु शरीर के अंदर भोजन या जल द्वारा ये प्रवेश कर जाता है, या तो भोजन के द्वारा करेगा या जल के द्वारा जो है इंसानों के बॉडी में प्रवेश करेगा। और इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 14 दिन मान्य रखती है, यानी यहाँ जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन में आपको ये पता लगेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है। अगर लक्षण देखें क्या क्या नजर आएगा, देखते हैं लक्षण क्या है। तो इसमें जो है पहला लक्षण आपको यही देखने को मिलेगा कि विषाणु आंत कोशिकाओं में जो है गुणन कर संख्या वृद्धि कर लेता है, और वहाँ पर रक्त द्वारा जो है मस्तिष्क में पहुँच जाता है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण रहता है। अगर यह मस्तिष्क तंत्रिका क्षति पहुँचता है और बच्चे में जो है पक्षघात यानी लकवा पैदा कर देता है, तो ये लकवा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इसकी पोलियो अटैक हुई है।
और गर्दन कड़ी सख्त हो जाती है, गर्दन जो है कड़ी और सख्त हो जाती है, ज्वार भी हो जाता है और फिर ढुकलने लग जाता है, यानी सर जो है ढुकने लग जाता है, यानी सर पे जो है कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है जिसको आप समझ भी सकते हो, और अगर कहीं देखने को मिले तो आप इस बात को जो है एनालिसिस भी कर सकते हो। आगे जो है हमारा इसका रोकथाम एवं उपचार। देखिए रोकथाम में यही है कि पोलियो वैक्सीन ड्रॉप या मुंह द्वारा पोलियो को जो है टीका बूंद जोड़ वाली पोलियो वैक्सीन के रूप में दी जाती है, यानी OPV का फुल फॉर्म जो होता है एरोयल पोलियो वैक्सीन। कहते हैं एक निश्चित अंतराल पर बच्चों को ये दिया जाता है, जो कि जो है हमारे देश में बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने के लिए पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम का आयोजन भी अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है। अब भारत जो है पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, यानी आपको पता है कि ये सरकार की जो मेहनत का फल ही है, जो जिसकी वजह से जो है ये पोलियो मुक्त भारत हुआ है, क्योंकि सरकार कहीं काम करे चाहे ना करे, लेकिन पोलियो के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें जो है बच्चों जो हैं पोलियो मुक्त हो चुके हैं। The next disease is a rabies, also called hydrophobia. The hydrophobia here is the rabies, and here is the pathogen is the rabies virus. The rabies virus is the pathogen, and the mode of transmission here a bite by the rabid dog. There is a bite by the rabid dogs, and inclusion period here 10 days to 1 to 3 months, and depending upon the distance of bite from the central nervous system, that is the brain and spinal cord. There is the most important. There is a depend upon the central nervous system. There are that a brain and spinal cord. There are bite distance. There is most important here the bite distance. There is a symptom are present, and there are symptom here. So here is severe headache and the high fever. There is a most important symptom here, and painfully contraction of the muscle of thorax and the chest, and chokings and the fear of the water leading to the death. There is a symptom, and prevention and cure here is a compulsory of the immunization of the dog on time to time, and killing of the rabid animals here, and the anti-rabies injection or oral dose are given to a person bite by the rabid animals. आगे जो है हमारा रैबिस की बात की गई है। रैबिस देखिए ये भी एक जो है रोगजनक जो है रैबिस विषाणु के द्वारा फैलती है बीमारी। तो रैबिस जो है बहुत ही साधारण बीमारी है, जो कि आए दिन आपको देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके घर के आसपास कहीं डॉग होगा, अगर उसको काट लिया है तो इसका मतलब है कि रैबिस बीमारी होने के चांसेस आप में बढ़ गया है। अगर देखा जाए इसकी संचरण विधि कैसी होती है, तो जो है रैबिड कुत्ता द्वारा काटे जाने से ये बीमारी होती है, यानी जनरली। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ ये नहीं कि रैबिस कुत्ता काटने से बीमारी हो जाएगा, अगर चूहा भी काट रहा है, चाहे कोई भी खरगोश, कोई भी जीव जंतु काट रहा है, तो इसको रैबिस होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मत समझना कि कोई और जीव काटा है तो इसका मतलब हमें रैबिस बीमारी नहीं होगा और ऐसे आप ग्रसित नहीं होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए रखता है और ये आपको समझना भी है। कहते हैं अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो कहते हैं 10 दिन से लेके 1 से 3 महीने के तक भी दिखा जा सकता है। लेकिन बात यहाँ डिपेंड ये भी करता है कि ये जो है नर्वस सिस्टम से कितनी दूरी पे काटा है। देखिए नर्वस सिस्टम तक पहुँचने में जो है समय लगता है, तो इसी भी बीमारी को जो है इसके समय इसका निर्धारण सही नहीं किया गया है। अगर मस्तिष्क से दूर काटा है, पैरों में काटा है, हाथों में काटा है, तो ब्रेन तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है काफ़ी लंबी होती है, 10 दिन भी हो सकती है और 1 से 3 महीने का भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं अगर लक्षण देखा जाए तो लक्षण जो होता है तेज सिर दर्द होता है, ऊंचे ज्वार होता है और गले व वक्ष छाती की मांसपेशियों में जो है कष्टदायक संकुचन होती है, यानी बहुत काफ़ी पेन होती है। घुटने व पानी के भय जो है इसकी वजह से जो है जल भी है, यानी जो है हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर, भीति, यानी इसके परिणाम स्वरूप जो है मृत्यु भी व्यक्ति को हो जाता है। तो इससे जो है व्यक्ति को अगर काट लेता है तो उसको पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए इसका जो नाम दिया गया है जो है हाइड्रोफोबिया के नाम दिया गया है। फोबिया एक तरह से पैदा हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक भी संभव है। बात करें अगर रोकथाम एवं उपचार की तो बात इतनी सी रह जाती है कि कुत्ते का जो है अनिवार्य प्रतिरक्षीकरण करवाना चाहिए जैसे समय समय पे। ठीक है, रैबिस से ग्रस्त पशुओं को मार देना चाहिए, नहीं तो वो जो है दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित करने के लिए पूरा तड़पते रहते हैं। रैबिस से ग्रस्त पशु द्वारा काटे गए व्यक्तियों को जो है एंटीरेबीज इंजेक्शन लगाना चाहिए या मौखिक या मुंह द्वारा खुराक भी देने की प्रावधान है, तो इसका उपयोग करना चाहिए जिससे कि वो बीमारी उस पर संचलित न हो सके।
The next disease here, hepatitis. Hepatitis is the pathogen is the hepatitis B virus. There is the causing of hepatitis B, the virus, and the mode of transmission here. The mainly is through the contaminated water, and inclusion period here generally 15 to 160 days. The hepatitis is a very dangerous disease here. Is hepatitis B. There is a some symptom here is a body ache and the loss of appetite and nausea, and the eyes and skin become yellowish, urine deep yellow in color. There is a mainly symptom here, urine deep yellow color due to bile pigment, and the enlarge of liver. The liver is big, the enlarge, and there is a prevention and the curve here. The hepatitis B vaccine is now available in India. There is the most important for the is hepatitis B is vaccine available, and the proper hygienic is to be observed and avoid taking fat rich substance. There is a mainly causing here a fatty rich substance. तो यहाँ पर हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है वो है यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस जो है बी की वजह से जो बीमारी होती है हेपेटाइटिस आपको पता ही है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी माना गया है। कहते हैं यकृति में जो है शोथ यानी हेपेटाइटिस का मतलब होता है हेपत का मतलब होता है यकृत और टाइटिस का मतलब होता है शोथ। देखिए रोगजनक जो है यकृति शोथ का विषाणु यानी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। अगर संरक्षण विधि देखा जाए तो मुख्यतः दूषित जल के द्वारा जो है ये फैलता है। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो ये सामान्यतः जो है 15 से 160 दिन तक जो है ये अपना इंक्यूबेशन दिखाता है। उसके बाद अगर लक्षण देखो तो इसमें सामान्य लक्षण देखने को मिलता है कि शरीर में दर्द रहेगा यानी बॉडी एच रहेगी, भूख न लगना, उबकाऊ, मिचली आना, हमेशा मिचली आता रहेगा इस लक्षण में, आंखों व त्वचा में जो है पीलापन पड़ जाना, और सबसे बड़ी इसकी जो खास बात होती है वो मूत्र का रंग जो है गहरा पीला पड़ जाता है। यानी अगर बाथरूम पीली होने लगे तो समझ जाना कि हेपेटाइटिस बी के आप शिकार होते जा रहे हो। ठीक है, इसमें पित्त वर्ण के कारण ऐसा होता है क्योंकि इसका रीजन ये भी होता है कि जो लीवर होता है वो बड़ा हो जाता है यानी लीवर बढ़ जाती है। यकृत का बड़ा होना भी इसका जो है मेन लक्षणों में से आता है। अगर हम इसकी बात करें रोकथाम एवं उपचार के लिए तो आपको पता है कि अच्छी बात यहाँ पर यही है कि हेपेटाइटिस जो है बी जो है वैक्सीन अब भारतवर्ष में उपलब्ध है। यानी हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों ये भारतवर्ष में जो है इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, और जो अगर देखा जाए तो उचित स्वास्थ्य बनाए रखना भी इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखते हो तो ये होने के चांसेस बहुत कम रहता है। अगर देखा जाए तो अधिक जो है वसायुक्त भोजन का त्याग किया जाना ही इसका बचाव का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अगर आप वसायुक्त भोजन ग्रहण करते हो तो हो सकता है कि ये बीमारी आप में भी पनप रहा हो। The next topic is influenza. The influenza is commonly known as the flu. The flu is an illness caused by the virus that is infect the respiratory tract. And compared to common cold, influenza is a more severe illness. The cause of influenza is caused by the virus which attack our bodies and cells, and resulting in a various effect of depending on the strain of the virus. And there are many strains of influenza virus. The virus is a mistake all the times a new variation strain arise. And this constant of changing enable their virus to be invaded the immune system of its host. And unfortunately, the immunity against one strain which is conferred by the exposure of immunization and does not be perfect against two other strain. A person infected with the influenza virus develops antibody against the virus. As the virus changes, the antibodies against the virus do not recognize the changed virus. And the influenza can be cured of causing by the change in the maturity virus. And the next here, a symptom. The symptom is typically symptom on influenza include there are fever, usually 100 Fahrenheit to 103 Fahrenheit in adult, and there is even high in the children. The 100 Fahrenheit and 103 Fahrenheit is the maximum, and there is a typical symptom on this influenza virus. And the respiratory tract infection symptoms such as a cough, sore throat, running nose, headache, pain in the muscles, and extremely fatigue. And there is a symptom here. And this also says nausea is abnormality and diarrhea, and sometimes accompany on influenza is an infection, especially in the children. Gastrointestinal symptoms are very prominent. And the most people who get
get flu and recover to completely in a 1 to 2 weeks, but some people is develop serious and potentially life-threatening is a complication such as a pneumonia. And here is a treatment and control. The much of the illness and death is caused by the influenza can be prevented by annual influenza vaccinations. And the influenza vaccination specifically is recommended from those who are the high risk of complication with the chronic disease of the heart, lung, and kidney. Diabetes are suffer from the anemia. Their treatment is also important here. The person suffering from influenza should be drinking plenty of fluids, take a symptom relief on paracetamol, aspirin, not with children under to the age of 16, and the ibuprofens and the recommended by their doctor. And the consult of the doctor immediately for a treatment. That is the most important here. तो यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लुएंजा आ गया। इन्फ्लुएंजा देखिए एक बीमारी है, कहते हैं इन्फ्लुएंजा इतावी भाषा का शब्द है और इसे जो है सामान्यतः फ्लू नाम से भी जाना जाता है। यह रोग श्वसन पथ को जो है संक्रमित करने वाले विषाणु के कारण होता है, यानी रिस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको संक्रमित हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है। कहते हैं सामान्यतः जो है सर्दी जुकाम की अपेक्षा इन्फ्लुएंजा ज्वर अधिक गंभीर बीमारी ही माना गया है। अगर देखा जाए इसके कारण के ऊपर तो कारण भी कुछ विशिष्ट है। कहते हैं कारणों में जो है इसमें इन्फ्लुएंजा ज्वर विषाणुओं के कारण होती है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में संक्रमण करता है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रभाव पड़ते हैं जो विषाणु के स्टोन यानी प्रभेद यानी प्रकार का जो है निर्भर करता है। कहते हैं फ्लू विषाणु के अनेक प्रभेद स्टोन होते हैं। विषाणुओं को सदैव उत्परिवर्तन होता रहता है और अनेकों प्रभेद यानी स्टोन बनते रहते हैं। इस लगातार परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसके प्रपोषी जो होते हैं विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र से बचे रहते हैं। दुर्भाग्यवश की बात यही होता है किसी एक स्टोन के प्रति जो है प्रतिरक्षा जो उद्भाषण या प्रतिरक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है और वह जो है वैदिक प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि ये तो बदलता रहता है, तो इसी वजह से इसके स्टोन बदलते रहते हैं। इसके लिए जो प्रतिरक्षा भी इसके ऊपर कार्य नहीं करता है। कहते हैं फ्लू विषाणु से संक्रमित व्यक्ति उस विषाणुओं से जो है एंटीबॉडी विकसित करता है। देखिए इसके लिए उसी व्यक्ति के एंटीबॉडी का लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्ट्रेन बदलता रहता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष रख दिया मैंने। कहते हैं विषाणु के परिवर्तन हो जाने से जो है एंटीबॉडी परिवर्तन विषाणुओं को ही नहीं पहचान पाते हैं और फ्लू हो जा सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है कि विषाणुओं को नहीं पहचान पाते हैं और फ्लू हो सकता है। कहते हैं परिवर्तन यानी उपरिवर्तन विषाणु के कारण ऐसा सब संभव हुआ है। अगर हम यहाँ पर लक्षण की बात करें तो फ्लू के विशेष लक्षण आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं इसके सामान्य लक्षण तो यही है कि इसके जो बुखार होंगे ज्वर होंगे वो 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक होंगे, यानी वयस्कों में जो है बच्चों में इसी प्रकार के तापमान देखने को मिलेगा। देखिए सामान्य तापमान जो होता है 98.7 मापा गया है फ़ारेनहाइट के रूप में, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ 100 से लेके फ़ारेनहाइट से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि उच्च ज्वार की सुचालक माना गया है। कहते हैं श्वसन पथों को संक्रमण के लक्षण जैसे खांसी हो जाएगा, गलफंद्र गहराहट यानी गले में जख्म हो जाएगा, नाक का बहना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द व अत्यधिक थकावन महसूस होगा। तो इसके जो है सबसे बड़ा सिम्टम यही रहता है कि अभी फ्लू के साथ कभी कभी जो है मिचली उल्टी भी दस्त की शिकायत भी होती रहती है। मलाशय के आँख संबंधी जो है लक्षण जो है मुश्किल से स्पष्ट होते हैं। फ्लू से संक्रमित जो है बहुत से लोग 1 से 2 सप्ताह के पूर्णतः स्वस्थ हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में गंभीर जीवन के लिए खतरनाक जटिलताओं विकसित हो जाते हैं, जैसे निमोनिया जो होती है इसी से आगे विकसित होने वाली बीमारी का नाम है। अगर बात हम करें नियंत्रण उपचार की तो आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाली बीमारी को या उससे होने वाली मृत्यु को काफ़ी हद तक वार्षिक फ्लू टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। लेकिन फ्लू टीका उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो है बताया जाता है जो चिरकाल यानी क्रॉनिक बीमारी जैसे हृदय रोग, फेफड़े व यकृत के रोग से, मधुमेह, गंभीर रक्तता से पीड़ित है और इसमें इस रोग को जटिल हो जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। और मान लीजिए किसी को जो है हृदय रोग, फेफड़ा, यकृत की रोग, मधुमेह बीमारी है तो ये बीमारी जो है अपना स्ट्रॉन्ग रूप दिखा सकती है।
अगर फ्लू से पीड़ित व्यक्तियों को जो है पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने की आवश्यकता होती है। जितना आप पानी पियो, जितना तरल पदार्थ लो, ये फ्लू में जो है काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कहते हैं चिकित्सा द्वारा बताया गया लक्षणों में राहत प्रदान करने वाले दवाएं लेने चाहिए, जैसे कि पैरासीटामोल, एस्प्रिन, लेकिन 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं है। या जो है हम आइनोवेरोफ्रोफिन्स दवाई सदा के लिए डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो इसमें जो है ये काफ़ी दवा जो है काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। कहते हैं देखा जाए उपचार के लिए सिविल चिकित्सा का परामर्श ले लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंगू। डेंगू इज देयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन disease. The dengue is on the acute fever causing by the virus. There is a dengue is on acute fever causing by the virus. It is of two types: dengue fevers and dengue hemorrhagic fever. The dengue fever is characterized by the onset of sudden high fever, severe headache, and the pain behind the eyes and in the muscle and joint. There is a main symptom here, and the dengue hemorrhagic is a fever is the acute infection in the viral disease. It is on the advantage of stage of dengue fever. It is characterized by the fever during the initially phase and other symptoms like a headache, pain in the eyes, joint pain, and muscle pains, followed by the sign of bleeding, red tiny spots on the skin, and is a bleeding from nose and gums. There is a dengue is their symptom. The next is how does the dengue spread? The dengue spread through the bite of infected Aedes. Aedes is a azophatic mosquito. There is a transmission of the disease occur when a mosquito bite an infected person and sequentially is a bite of healthy person. In doing so, it is transmitted for blood, contaminate the virus to be healthy person and the person become infected with the dengue. The first symptom of the disease occur about 5 to 7 days after infected bite, and the Aedes mosquito rests indoor in closed set and other dark place and is active during the daytime. The outside is a rest where it is a cool and shaded. The female mosquito lays her egg in the stagnant water contaminants such as the coolers, tire, empty basket, and their unknown home. And other areas of town or village, the eggs become adult about the 10th day. There is an incubation period here. The incubation period is the time between to the bite of a mosquito carrying of dengue virus and the start of symptom average 4 to 6 day, with the range of 3 to is a 14-day here, and diagnosis here. There is a diagnosis in there a method through the blood test for the scanning of the antibody against dengue virus. In addition to the blood plates count also get dramatically reducing in the infected person. There is the most important here blood plate count. The symptom of here dengue, the symptom of dengue fever, a sudden onset of high fever, generally 104 to 105 Fahrenheit. There is a Celsius is a 40 Celsius, which may be last 4 to 5 days. There is a most important here, a severe headache, mostly in the forehead, and pain in the joint and muscles, body arches, and pain behind the eyes is a which is a worse sense and with the eyes movement. A nausea and vomiting also the symptom of the dengue fever. The next is a symptom and dengue is a hemorrhagic fever. This includes symptoms similar to dengue fever plus other symptoms such as a sub and the continuous pain in the abdomen and the rashes on the skin, the bleedings from the nose, mouth or in the internal organ, and frequently vomiting without blood, and the black stool due to the internal bleeding, and excessive thirst and dry mouth, and pale cold skin and weakness. And here is the prevention. The prevention is a following step can be take a prevent spread of dengue fever. The first here, avoid water stagnation of for more than 72 hours so that the mosquito do not be breed there, and prevent the mosquito breeding in the store water body like a pond and wells. And also is a destroy the discarded objected like a old tire and bottle and they are collect at the store raining water,
and the use of mosquito repellent and the wear long sleeve bit is close to be curtails exposure, and use the mosquito nets also during the daytime, and avoid to outdoor activity during to when and the dusk when the mosquito are mostly active. And here, a patient suffering from the dengue fever must be isolated from to the least 5 days. And the last here are report to be a nearest health center from any suspected case of dengue fever. The next is a treatment for dengue and dengue hemorrhagic fever. There is no specific treatment for dengue fever. A person with a dengue fever should rest and drink a plenty of fluid. Dengue hemorrhagic fever is treated by the replacing a lost fluid. Some patients need for a blood transfusion to control of bleeding. दोस्तों हमारा जो आ गया है डेंगू फीवर जो है मोस्टली इंडिया में पाया जाता है, और कहते हैं कि डेंगू से जो है आए दिन जो है हमारे भारत में जो है लोग परेशान होते हैं। और डेंगू जनरली देखा जाए तो यहाँ पर जो है लोगों की कुछ लापरवाही की वजह से भी पनपते हैं। कहते हैं कूलर और जो है आसपास के पौंड हो गया पानी इकट्ठा करके रख देते हैं, तो इसके जो है डेंगू के हर एक जो है कंडीशन यहाँ पर भारत में मिल जाता है। इसलिए हर साल जो है डेंगू की वजह से न जाने कितने तरह के जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। अगर देखा जाए डेंगू तो डेंगू जो है स्पेनी भाषा का शब्द है जो है स्वाहिली भाषा यानी अफ्रीका के एक भाग से आया है। डेंगू विषाणु द्वारा उत्पन्न एक तीव्र ज्वार है, यानी बहुत तेज बुखार होता है। सामान्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को अगर देखा जाए तो डेंगू ज्वार होता है यानी डेंगू फीवर, और जो एक होता है रक्त स्वाति डेंगू ज्वार, यानी जो है इसमें डेंगू हेमोरैजिक फीवर यानी इसमें रक्त का जो है बहना सम्मिलित होता है। अगर देखा जाए डेंगू ज्वार के लक्षण तो कहते हैं अचानक जो है उच्च ज्वर होना, काफ़ी तेज सर दर्द और नेत्र के पश्चिम भाग में पेशियां तथा जोड़ों में हड्डियों में तेज दर्द होने के कारण इसे जो है हड्डियां तोड़ बुखार भी कहा जाता है। यानी काफ़ी हड्डियों में जो है ये काफ़ी फीवर देखने को मिलता है। अगर डेंगू रक्त स्वास्थ्य देखा जाए तो ये ज्वर एक तीव्र संक्रमण विषाणु रोग है। यह जो है डेंगू ज्वर की अग्रवर्ती अवस्था है। आरंभिक अवस्था में इसके अभिलक्षण ज्वर, सिर दर्द, आंखों में दर्द, जोड़ों मांसपेशियों में दर्द, उसके पश्चात जो है रक्त स्वास्थ्य के लक्षण नजर आने लग जाते हैं। त्वचा में लाल छोटे छोटे चकत्ते आ जाते हैं। नाक व मसूड़े से रक्त स्वास्थ्य होने लग जाता है, यानी जो है नाक और मसूड़े से जो है खून निकलना इसका सबसे बड़ा लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। अब देखा जाए डेंगू कैसे फैलता है। देखिए ये तो बहुत ही आसान बात है कि डेंगू एक संक्रमित इंडियस एफिस मच्छर है, यानी एडिस जो है इसमें एडिस इज़ोफाइस्टाइस मच्छर के ना काटने की वजह से ये फैलता है। क्योंकि जब मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है और उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो रोग का जो है संचलन हो जाता है। ऐसा करने में यह स्वस्थ व्यक्ति में जो है विषाणु युक्त रक्त संचलित करता है और व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है। रोग का प्रथम लक्षण जो है संक्रमित काट के लगभग 5 से 7 दिनों के बाद प्रकट हो जाती है, यानी इसको 5 से 7 दिन के बाद आपको जो है लक्षण देखने को मिल जाएगा। इंडीज मच्छर जो है घर के अंदर कमरे, अलमारी, शौचखानों एवं अंदर अंधेरे स्थानों पर रहता है। यह दिन में समय बहुत क्रियाशील होता है, यानी आपको काटेगा भी तो दिन के समय ही काटता है। बाहर या ठंडे में छायादार जगहों पर यह बहुत काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मादा मच्छर रुके जल यानी कूलर, टायर, खाली बोतलों में बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है जिसमें पानी इकट्ठा हो। कहते हैं शहरों व गाँव में घर के आसपास व अन्य स्थानों पर अंडे देते हैं और इन अंडों से जो है 10 दिन में ब्याक्स मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये काफ़ी जल्दी जो है काफ़ी स्प्रेड करती है, फैलती है, तो ये बहुत काफ़ी घातक भी रहती है। अगर बात करें इसके धोरण अवधि यानी इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो डेंगू जो है विषाणु के वाहक मच्छर काटने के जो है समय के औसतन 4 से 6 दिन में लक्षण दिखाई पड़ने लग जाते हैं। इसका जो है पारस उससे 14 दिन तक हो सकता है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड जो है 14 दिन तक ये रह सकता है। और एक बात तो आपको पता है कि वायरस का कोई इलाज नहीं होता, वायरस से सिर्फ हम बच सकते हैं, ठीक है। और निदान क्या है इसका, देखिए निदान जो होती है रक्त परीक्षण द्वारा जो है डेंगू वायरस के प्रतिपिंडों का पता लगाकर निंदा किया जा सकता है, यानी इसके प्रति जो है हम एंटीबॉडीज नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी इसका कुछ निदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो संक्रमित व्यक्ति में रक्त जो है विषाणुओं की संख्या में भारी गिरावट आ जाती है, यानी रक्त की जो है कमी आ जाता है, क्योंकि ब्लड भी आती है, इस वजह से बॉडी में जो है ब्लड कम जाता है। अगर बात करें इसके लक्षण का यानी सिम्टम का, तो डेंगू ज्वार के लक्षण जो होंगे ये जो है अकस्मात उच्च ज्वार होंगे, यानी अचानक जो होगा 104 से 105 फ़ारेनहाइट में जो है आपको बुखार आएगा। अगर देखा जाए इसको सेल्सियस में तो 40 सेल्सियस तक आ जाता है। दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो जनरल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 98.7 होता है, ठीक है। तो इसमें जो है फ़ारेनहाइट के रूप में आता है। अगर सेल्सियस में देखा जाए तो यह है 38.7 जो होता है सेल्सियस में होता है। तो यहाँ पर जो है फ़ारेनहाइट की बात किया गया और 40 सेल्सियस की बात की गई है, जो कि 4 से 5 दिन तक बना रहता है। आप देख सकते हो कि इतना तेज़ बुखार अगर होगा तो व्यक्ति में जो है कई तरह की जो है समस्या पैदा हो जाएगी। ये जनरली देखने को आपको मिल सकता है। कहते हैं तेज़ सिर दर्द विशेषकर माथे में होती है। हड्डियाँ जोड़ों तथा जो है मांसपेशियों में दर्द शरीर में दर्द का कारण बनता है। आंखों के पीछे दर्द जो आंखों की गति के साथ अधिक बढ़ जाती है। अब कहते हैं उबकाई यानी मिचली भी आती है और उल्टी भी देखने को मिल जाता है कि उल्टी भी इस बीमारी में होने लग जाती है। अगर हम बात करें रक्त स्वादिष्ट डेंगू ज्वार के लक्षण की, तो कहते हैं इसमें रोग को सभी लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेट उदर में लगातार तेज दर्द रहेगा, त्वचा में जो है दरारें यानी चकत्ते छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, नाक मुंह व आंतरिक अंगों में जो है रक्त स्वात होने लग जाते हैं यानी खून जो है बहने लग जाते हैं, रक्त या बिना रक्त की लगातार उल्टियाँ होने लग जाती है। आंतरिक रक्तस्राव के कारण जो है काला मल आता है यानी जो लैट्रिन होती है वो काला होने लग जाता है। और काला इसलिए होता है क्योंकि उसके जो है अंदरूनी बॉडी में जो है रक्त का स्वेत होने लग जाती है। अत्यधिक प्यास लगेगा, मुंह का सूखना भी इसका मुख्य लक्षण में आ जाता है। अगर देखा जाए तो इसका जो है पीला, ठंडी त्वचा और कमजोरी भी काफ़ी हद तक इससे आ जाती है। अगर बात करें इसके रोकथाम की, तो कहते हैं जो है डेंगू जो है ज्वार को फैलाने के रोकने के लिए निम्न तरीके बचाया जा सकता है। किसी भी स्थान पर जो है 72 घंटे से अधिक जल को न रुकने दे ताकि जिसमें मच्छर पैदा न हो पाए। जलाशय जैसे तालाब, कुएं आदि के जहां जल संग्रहित किया जाता है वहां इसके मच्छर को प्रजनन को रोकने यानी मच्छर न पनपने दें। बेकार फेंके हुए पुराने पहिया, बोतल आदि को नष्ट कर दे जिससे वर्षा में पानी जो है जमा न हो पाए। मच्छर प्रक्रिया से यानी रिपेलेंट दूर भगाने की दवाइयों का प्रयोग करें व अपने शरीर को ढक कर रखें। मच्छरदानी हो लगाकर ही सोए, क्योंकि मच्छरदानी से जो होता है मच्छर काटने की संभावना बहुत कम रह जाती है। आगे जो बात बताई गई उष्मकाल एवं गोद धूल के समय घर के बाहर की गतिविधियां कम कर दे, क्योंकि ये मच्छर इस अवधि में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं यानी उष्मकाल में काफ़ी सक्रिय होते हैं। कहते डेंगू ज्वार से पीड़ित रोगियों को कम से कम 5 दिन तक अलग रखना चाहिए। कहते डेंगू ज्वार से किसी के पीड़ित का संदेह होने पर जो है निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करने की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए डेंगू व रक्तस्रावी डेंगू मच्छर का उपचार कैसे है, तो कहते हैं डेंगू ज्वार का कोई विशेष उपचार नहीं है। डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों को जो है आराम करना चाहिए व बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने चाहिए, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं होता है। जब तक ये इन्फ्लेमेशन पीरियड अपना कंप्लीट करेगा नहीं तब तक जो है आपके बॉडी से ये जाएगा नहीं। रक्तस्राव डेंगू ज्वार का जो उपचार शरीर के जो है नष्ट हुए तरलों के प्रतिस्थापन से होता है। कुछ रोगियों में जो रक्तस्राव रोकने के लिए खून चढ़ाने की भी नौबत आ जाती है, इन ब्लड ट्रांसमिशन भी होती है। तो सबसे अच्छा अगर डेंगू किसी को होता है तो उसको जो है हद से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थों का मतलब दोस्तों यही होता है कि पानी जैसे चीज़ होती है उसको पीना चाहिए, जैसे हो गया नारियल पानी हो गया, सेब रस हो गए या जूस हो गया। तो इन चीज़ों का सेवन करने से जो होता है उसको डेंगू का इतना अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर इन चीज़ों का सेवन नहीं कीजिएगा तो डॉक्टर के पास जाके जो है आपको तरफ कभी ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो कभी आपको दवाई देंगे, लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप स्वयं ही अगर इन दर्दों से बचना चाहते हो तो जो है जितना हो सके लिक्विड लेने की कोशिश करो। जितना तरल पदार्थ लोगे उतना जो है इस बीमारी से छुटकारा बहुत जल्दी पा भी जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीज कॉजिंग बाय बैक्टीरिया। हियर disease caused by a bacteria. The first of disease here are tuberculosis. Tuberculosis is a generally name is a TB. There is a TB is a tuberculosis. There is a pathogen here, a bacterium. Is a Mycobacterium tuberculosis. There is a pathogen. There is a Mycobacterium tuberculosis. And the mode of transmission here, the airborne discharge through the sputum, cough and sneezing of the infected person. There is a transmission here of sputum, cough and sneezing of the infected person. And here incubation period there 2 to 10 weeks is during which is the bacterium produce a toxin tuberculum. There is the 2 to 10 week there is a bacteria is a produce a toxin is a tuberculum. There here a symptom. So here a symptom there is a persistent of fever and coughing and chest pain and the blood come out with the sputum and generally is a weakness. There is the most important symptom here generally weakness in a body.
The next is a prevention and the cure. There is a isolation of patient to the avoid spread to the infection, and there is a BCG vaccine is given to children as a preventive measures, and the living room should be airly, neat and clean surroundings, and antibiotic is administered by the treatment. There is a most important prevention and cure here. There is a BCG vaccination in the children, and the living room should be airly, neat and clean surrounding. There is a most important here. The next is a typhoid. There is a typhoid here. The pathogen is the typhoid is a Vexculum rod-shaped bacterium. Is a Salmonella typhi. There is a typhoid here. Is the pathogen is a Salmonella is typhi. Is the mode of transmission through their contaminated food and water. The typhoid is a transmission from the food and water, and here inclusion period about 1 to 2 weeks. There is inclusion period 1 to 2 weeks, and symptom here there are continuous fever and headache and slow pulse rate. There is a main symptom here a slow pulse rate, and symptom the next is a radius artery appear on the bell. There is a wells is the radius rushes appear on the bell, and there's the symptom in the stimuli is a case ulcer may be rupture or resulting of death of the patient. There is a ulcer may be a rupture resulting of death of the patient. The symptom is the most important here. Then next has a prevention and cure. There is a anti-typhoid inoculation should be a given, and avoid talking to expose of food and drinkings, and proper sanitation and the cleanliness should be a maintaining. There is a prevention is the most important here, and proper disposal of excrete of the patient, and the antibiotic should be administered. There is the most important prevention here. The next is a cholera. Cholera it is often break out among the people in the crowded area and the area with the poor sanitary condition. The cholera is distributed in the poor sanitary condition, and there is a pathogen is a common shape bacterium Vibrio cholerae. There is a Vibrio cholerae is a pathogen, and the mode of transmission here a contaminated food and water. Housefly is the carrier. Inclusion period here a 6 here to the 1 to 2 3 big days. There is an inclusion period. There is a mainly is a mode of transmission here. House flies is a carried because there is a contaminated food in the water there standing, and there is a commonly shaped is bacteriums, and the hair symptom. The symptoms here acute diarrhea and the watery stool. There is a watery stool and the acute diarrhea. There is a main symptom, and the muscular cramps here and the loss of minerals through the urine, and dehydration lead to be a death. Dehydrations lead to death. There is a very serious problem here, and the prevention and cure here the cholera vaccination should be a given, and electrolyte is a sodium potassium sugar dissolved in the water should be give a patient to check a dehydrations, and is a market is available to the ORS oral dehydrated solution. That is the most important ORS to the continue his drinking. And there is third is the proper washing and cooking of food. That is the most important proper washing and cooking of food. And the also is a proper disposal of the healthy human excrete, and the flies should be not be allowed to sit on the table and utilities. There is the most important. There is a mainly reason for the house flies of this disease. The next area, diphtheria. Diphtheria is this disease generally occur in the children of 1 to 5 years age, and there is a pathogen is a rod-shaped bacterium. Is a Corynebacterium diphtheria, and the mode of transmission here through the air means droplet infection, and inclusion period to 2 to 4 days. There is a most important inclusion period 2 to 4 days diphtheria. The next here is a symptom. Symptom is a slightly fever and shows thyroid and general indispositions, and owing to the semi-solid material in the thyroid which is devolved into the tough membranes. The membranes may be cause of closing, blocking of the air passes resulting into the death. That is symptom. And the prevention occur here. The immediately medical attention should be a given, and baby should be a give to DPT vaccine. That is the most important. And so sputum or a nasal discharge of the infected child should be disposed of, and antibody may be given to under doctors
is the supervision and isolation of the infected child. That is the most important prevention of this disease. The next disease is a leprosis. Leprosis here, the leprosis pathogen is a bacterium, and the Mycobacterium leprae is here a bacterium is the pathogen, and the mode of transmission. The mode of transmission here is a prolonged contact with the infected persons. Nasal secretions are the mostly like a infected materials of family contact. There is the nasal secretions, and the here incubation period is a 1 to 5 year. There is a leprosis, and their symptom here. The symptom is mainly is a effect to the skin, formation of the nodules of the ulcer, and the scab of the deformites of finger and toes. An infected area, loss of sensations. There is the most is a symptom here. And prevention occur here. The child should be keep away from parents suffering from the leprosis, and some medicine may be arrest the disease and prevent through spreading. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है टॉपिक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न रोग। देखिए ये जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैं जो जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा था वायरस के रिगार्डिंग था, अब जो है हमारा जीवाणु के कारण उत्पन्न रोग है। देखिए अब जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है ये आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, यानी इसके लिए जो है बैक्टीरिया जिम्मेवार होता है। कहते हैं यदि अंग्रेजी बैक्टीरिया शब्द जो है बहुवचन है, इसका एक वचन बैक्टीरियम्स कहलाता है। अगर सबसे पहला बीमारी यहाँ देखा जाए हमारे समक्ष जो आया है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को यक्षमा भी कहते हैं या तपेदिक भी कहते हैं, और जनरली इसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये जनरली देखने को मिलता है। पहले के समय में टीबी जो था लाइलाज बीमारी हुआ करता था, लेकिन आज के समय जो है डॉट्स नाम की जो मेडिसिन है उसको डॉट्स दी जाती है और डिस्पेंसरी में ही खिलाई भी जाती है। तो आज के समय में टीबी बहुत खतरनाक बीमारी नहीं रह के साधारण बीमारी है, लेकिन कहा जाए अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो कहते हैं ये बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। अगर देखा जाए टीबी के बारे में या ट्यूबरकुलोसिस की बात किया जाए तो इसका जो है रोगजनक जो होती है एक जीवाणु होती है बैक्टीरियम्स, यानी ये जो है बैक्टीरियम की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये एक वचन है, यानी इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम्स ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है रोगजनक का नाम है, यानी पैथोजन का नाम है जो संक्रमित व्यक्तियों के रिगार्डिंग होती है। अगर देखा जाए इसको संचार की विधि कैसे ये फैलती है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो जनरली सी बात है संक्रमित व्यक्ति के वायु वहित विसर्जित पदार्थ जैसे थूक, खांसी, छींक आदि के निकलने पर होता है। तो जनरली एक बात देखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी के जो है ट्यूबरकुलोसिस घर में है तो मैक्सिमम जो है सभी व्यक्ति को होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसके संपर्क में रहते हैं और कहते हैं थूक, खांसी और छींक इससे बच नहीं पाते हैं, और उनको भी जो है ये ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी जो है उनको भी ग्रसित कर दिया जाता है। तो ये कई जगह पर देखने को मिला भी है कि अगर एक घर में किसी व्यक्ति को हो जाता है तो जनरली सभी व्यक्तियों को होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो है आपको जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बीमारी जो है कभी कभी घातक भी सिद्ध हो जाता है। अगर हम देखा जाए उद्भवन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो ये जो होता है 2 से 10 सप्ताह लग जाता है इसको उभरने में, दिखाई देने में, और इस अवधि में जो है जीवाणु एक विषैली पदार्थ जो है ट्यूबरकुलिन्स पैदा करती है, जो कि बहुत काफ़ी घातक सिद्ध भी होती है। तो इसलिए जो है इसको सही समय पर रिकॉग्नाइज कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहती है। अगर बात आती है अब लक्षण की, देखिए लक्षण इसको क्या दिखेगा। सबसे पहली बात तो यही आगे लगातार ज्वर एवं खांसी बनी रहेगी, यानी बुखार भी रहेगा और खांसी भी रहेगी। छाती में दर्द एवं थूक के साथ जो है रक्त स्वेत भी आने लग जाता है। तो ये जो है पहचान करना बहुत आसान हो जाता है, और सामान्य कमजोरी भी आने लग जाता है, यानी वेट लॉसेस होने लग जाते हैं। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर जो है ये बीमारी का लक्षण दिख रहा है। अगर रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो है रोगी को अलग रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी एक को हो जाए तो जनरली सबको होने की चांसेस बन जाता है घर के सदस्यों को, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और ये तो जो है छींकने से, ठीक है, या स्पूटम से, तो ये फैलने का जो है साधारण मार्ग है। अगर देखा जाए निरोधक उपाय के तौर पे बच्चों को जो है BCG के टीके लगवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर BCG का टीका लगवा देते हैं तो इसको जो प्रति जो है सुरक्षा कवच के कार्य करता है। कहते हैं रहने वाले कमरे में हवादार होना चाहिए, स्वच्छ और आसपास स्वच्छ वातावरण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि ये बीमारी का जो है सामना किया जा सकता है। अगर देखें उपचार हेतु जो है एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक दवाई का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि आजकल जो है डिस्पेंसरी में साधारण तौर पे मिल जाता है विदाउट कॉस्ट।
उसके पश्चात दोस्तों हमारा बैक्टीरियम्स में आ जाता है टाइफाइड। देखिए टाइफाइड कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं है। टाइफाइड तो आजकल जनरली आपको सुनने को मिल ही जाता है, और कहते हैं हर साल जो है टाइफाइड की वजह से यानी कितने व्यक्ति जो है बीमार पड़ते हैं और अपने जो है धन को लॉस करते हैं। तो यही बात है, टाइफाइड बहुत खतरनाक होता है, तो इससे हमें बचने का भी बहुत ईजी है। कहते हैं इसे आंत ज्वर यानी टाइफाइड फीवर या मोतीझारा भी कहते हैं। यानी ये आंत से रिलेटेड बीमारी है। जो रोगजनक होता है वो होता है एकल बैसिलस झरनुमा यानी झरदार बैक्टीरियम सैमनोटाइफी की वजह से जो होता है ये सैल्मोनेटाइफी की वजह से ये बीमारी होता है। और कहते हैं संचार की विधि जो है संतुलित भोजन एवं जल द्वारा होता है। देखिए ये बीमारी जो मैक्सिमम देखने को मिला है, अगर व्यक्ति पार्टी में खाना खाने जाता है, पार्टी में खाना वाना खा के आता है तो उसको टाइफाइड की मैक्सिमम देखने को मिला है। पता नहीं किस लिए, कारण क्या है, क्योंकि पार्टी में भी तो सही ढंग से खाना बनाया जाता है। क्या कारण होता है जो यही फैलने का सबसे बड़ा कारण बन देखने को मिला है। तो यही बात है, अगर बाहर के अगर आप खाना खा रहे हो तो सोच समझ के खाना और देख के खाना कि ये दूषित ना हो और कोई गलत तरीक़े से ना बनाया गया हो, क्योंकि ये जो टाइफाइड है मैक्सिमम जो है दूषित खाना खाने से ही होता है। दूषित खाना आप कहीं भी खाते हो तो समझ जाना कि वो टाइफाइड का आपका लक्षण जरूर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे जहाँ भी मर्जी हो, चाहे नुक्कड़ पे खा रहे हो, तो वहाँ तो मक्खी जो है मक्खियाँ भिनभिना ही रही होती है और लोग भी बड़े चाव से वहाँ पर खा रहे होते हैं। और कहा जाए तो मक्खी जो है 1 लाख बीमारी का जो है कारक बनता है। ये आपको भी समझ है और मुझे इस बात की भी नॉलेज है। तो इसलिए जो है दूषित भोजन एवं जल जो है हमें नहीं लेना चाहिए। और कई क्षेत्र में तो जल की सबसे बड़ी समस्या होती है। कहते हैं बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो है जल जो है व्यक्तियों को दूषित जल ही ग्रहण करना पड़ता है, पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारी जिससे वो ग्रसित होते हैं। अब ये भी क्या क्या करें, क्योंकि इनके लिए जो है साफ़ पानी मुहैया नहीं करवाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको दूषित जल ही पीना पड़ता है और टाइफाइड जैसी बीमारी है उसका सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये बातें बहुत जो है विश्वव्यापी रहती है, क्योंकि इसके लिए जो है प्रत्येक सरकार को जो है ठोस कदम की उठानी चाहिए। कहते हैं पानी ऐसी चीज़ होती है जो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवा और पानी जो है बेशकली हमें फ्री में मिलता है और नवीकरणीय संसाधन में से आता है, ठीक है, इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको सरकार को जो है संरक्षण करने की आवश्यकता है, न कि फ्री करने की आवश्यकता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कहते हैं इंक्लूशन पीरियड जो इसकी होती है 1 से 3 सप्ताह तक रहती है, ठीक है। 1 से 3 सप्ताह में आपको नज़र आ जाएगा कि टाइफाइड जो है हो रखा है और इसका सामान्य जो है लक्षण देखने को मिलेगा। सामान्य बात अगर देखा लक्षण तो यही होता है कि लगातार ज्वर जो रहता है बना रहता है, सिर दर्द रहती है, धीमी संपादन यानी नाड़ी की दर्द जो है कम गति से चलती रहती है। कहते हैं पेट में जो है लाल दाने आने लग जाते हैं। गंभीर स्थिति में जो है व्रत यानी घाव, जख्म, अल्सर के फटने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाता है। तो देखिए बहुत काफ़ी घातक भी वजन बन जाता है अगर समय रहते आप इसको पहचान न कर पाए तो। अगर देखा जाए रोकथाम एवं बचाव तो एंटी टाइफाइडा जो है टाइफाइड रोधी टीकाकरण करवाना चाहिए। खुले रखे गए भोजन को पैर नहीं लेना चाहिए, यानी यही बात आ गया है कि कोई भी खुला हुआ भोजन हो तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हो कि अगर मार्केट में आप चले जाओ तो वहाँ मक्खी 1 लाख जो होता है खानों पे भिनभिना रहा होता है और आप उसी में से खरीद रहे होते हो। तो ये जो होता है टाइफाइड का सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है। और ये देखने में भी सही नहीं लगता है, न जाने व्यक्ति कैसे खरीद लेते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि 1 लाख मक्खी लगी रहती है, न जो भोजन को है न ढक के रखते हैं न कुछ रख करके रखते हैं। और जो व्यक्ति भी है बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है बड़ी चाव से जो है उस जगहों पर खा रहे होते हैं, पता नहीं उनकी समझ क्या हो जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो उचित स्वास्थ्य एवं सफाई का रखरखाव इसके रोकथाम के सबसे अच्छा उपाय माना जा सकता है। और रोगियों के जो विसर्जन मल मूत्र आदि का जो है उचित निस्तारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सही में समय रखते हैं अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, तो इससे बचाव करने का सबसे अच्छा साधन बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हैजा। देखिए नाम बड़ा अजीब है, हैजा का मतलब होता है कि शहर से शहर ख़त्म हो जाना। ये जो होती है विसुलिका कोलेरा होती है, जिसको कोलेरा नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि पुराने समय में अगर हैजा फैलती थी तो गांव के गांव और शहर के शहर ख़त्म हो जाते थे। और इस पर सरकार को भी बहुत प्रिकॉशन करना पड़ता था कि जिस एरिया में ये बीमारी फैलती थी वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु में मार दिया जाता था। तो ये पुराने समय की बात थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है कोलेरा बहुत ही साधारण बीमारी है अगर आप समय पे इसको पता लगा लेते हो तो कहते हैं ये जो होती है यदि अक्सर भीड़ वाले या अपर्याप्त स्वच्छ वाली परिस्थिति में ही फैलता है, यानी वातावरण गंदा होता है तो कोलेरा फैलने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर देखा जाए रोगजनक यानी कोमा के आकार का जीवाणु होता है, कोमा के आकार के जीवाणु अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो जो
देखते हैं, अगर स्टैनिंग करोगे तो इसमें जो है आपको एक कोमा के रूप में दिखेगा, क्योंकि हमने तो देखा था इसलिए हमें पता है कि कोमा के रूप में ये दिखता है। और इसको जो विर्जियो क्लोरेडिस यानी बेब्रो क्लोरेस के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप माइक्रोस्कोप में भी देखना चाहते हो तो अगर स्टैनिंग करते हो, सैफरिन यूज़ करोगे तो कलरफुल आपको दिखेगा ये काफ़ी। लेकिन ये जो होगा आप बड़े बड़े जब स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर ही दिखाया जाता है, हर जगह तो ये एक्सपेरिमेंट संभव नहीं रहता है। ठीक है, तो जब कॉलेज में जाओगे तो आपको ये दिखने को मिल जाएगा जब आप इंस्टीट्यूट या कोई भी ज्वाइन करोगे तो। ठीक है, तो वहाँ देखना। कहते हैं अगर संचार विधि देखा जाए तो दूषित खाद्य जल होती है और घरेलू मक्खी इसकी सबसे बड़ा वाहक होता है। मैं पहले ही आपको कहा हूँ कि मक्खी जो होती है सभी बीमारियों का सबसे बड़ा पहला कारक बनता है, क्योंकि मक्खी के जो होते हैं जहाँ भी वो बैठ जाती है, कहीं भी बैठ जाती है और वही हमारे भोजन पे आके बैठती है और हम भी खाने लग जाते हैं, जो कि बीमारी का कारण बन जाता है। ठीक है, कहते हैं बीमारी हमें स्वयं नहीं आती, हम स्वयं लाते हैं। हमारी जो है गंदी आदतें यही चीज़ जो हमें बीमारी का कारण बनाती है। अगर देखा जाए इसकी इंक्यूबेशन पीरियड यानी तो अवधि देखा जाए तो 6 घंटे से लेकर 2 से 3 दिन में आपको हैजा के लक्षण दिखने लग जाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो हैजा के लक्षण क्या है, चलिए देखते हैं हैजा के लक्षण क्या है। अगर हैजा के लक्षण की बात करें तो सबसे पहली तो यही बात आती है कि तीव्र दस्त आने लग जाता है, चावल की पानी की तरह मल आने लग जाता है, यानी पतला जो होता है स्टूल आने लग जाती है और तीव्र जो है दस्त आती रहती है, उल्टियाँ होती रहती है। तो जनरली सी बात है कि इस बीमारी में जो होता है पानी का हर्ष हो जाता है, क्योंकि इसमें उल्टी आना, ठीक है, स्टूल में जो है पानी आना, ठीक है, जिसको टॉयलेट लैट्रिन भी कहते हैं, उसमें पानी ही लैट्रिन होती है। ठीक है, पेशियों में जो ऐंठन होता है, मांसपेशियों में बहुत तेज़ दर्द ऐंठन सी महसूस होती है। मूत्र द्वारा जो होता है खनिजों का हर्ष हो जाता है, क्योंकि मूत्र आपको पता ही कि किडनी का काम होता है जो मिनरल को छानना होता है, तो ये छानने के कार्य भी इसमें असफल हो जाती है और मूत्र द्वारा जो है खनिज पदार्थों का जो है हर्ष हो जाता है, यानी जो इंपॉर्टेंट पदार्थ हमारे बॉडी को जाना चाहिए वो मूत्र द्वारा बाहर बॉडी से निकल जाता है। तो जर्नली सी बात है कि इंसान की मृत्यु का कारण तो बनेगा ही बनेगा। इसमें सबसे बड़ी बीमारी यही होता है निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु भी आती है। और ये अगर आप देखोगे तो हैजा जो होती है मेनली जो होती है डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा इसका लक्षण होता है। अगर आप समय रहते अगर तरल पदार्थों का सेवन नहीं किए तो हो सकता है कि इंसानों की जो है शरीर में पानी कम होने की वजह से मृत्यु भी हो जाए। तो इसलिए जो है क्लोरा बहुत ही खतरनाक बीमारी के नाम में पहले जाना जाता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर देखा जाए अगर रोकथाम एवं उपचार तो हैजा का टीका दिया जाना चाहिए और विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम पोटाशियम चीनी आदि पानी में घोल कर उनको दिए जाने चाहिए ताकि निर्जलीकरण को रोका जा सके। बाजार में मुख्यतः जो है निर्जलीकरण घोल जो होती है जिसको हम ORS की कहते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन को भी नाम उपलब्ध है, का जो है हम सेवन करके भी बच सकते हैं। इससे क्या होता है पानी की मात्रा जो होता है बॉडी में कंप्लीट हो जाता है और व्यक्ति जो है काफ़ी स्वस्थ महसूस करता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति को अगर स्टूल हो गया है या दस्त हो रहे हैं तो जितना हो सके आपको उसको तरल पदार्थ देने की आवश्यकता जितना हो उसको जूस दे दीजिए, जितना है ORS की घोल बना पिना कर दीजिए जिससे पानी की जो कमी बॉडी में न हो पाए। उसके पश्चात आता है खाद्य पदार्थ को भली भांति धोकर पकाना चाहिए, क्योंकि न धोने से भी हैजा फैलने का कारण बनता है, क्योंकि अनहाइजीनिक अगर बनोगे तो ये बीमारी जो है आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। रोगों को जो है वमन मल का उचित निपटारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मक्खियों के खाद्य पदार्थ को बर्तनों में बैठने न देना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कार्य रहता है। तो ये जो चीज़ें देखना प्रत्येक व्यक्ति का काम बन जाता है। उसके पश्चात है हमारे समझ डिपोथीरिया। देखिए डिपोथीरिया जो होती है यह एक रोग प्रायः जो है 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे के होते हैं, यानी जनरली देखा जाए तो छोटे बच्चों को ये जो है डिपोथीरिया की बीमारी हो जाती है। अगर देखा जाए इसका रोगजनक क्या है तो इसको छरनुमा यानी दंडकार जीवाणु होती है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो छरनुमा ये दिखेगा, लंबा लंबा रॉड के साइज़ के दिखेंगे। अगर इसका देखा जाए कि जो है रोगजनक जो है कोरोनोबैक्टीरियम्स डिपोथीरिया जो होती है इसका जो है रोगजनक है और इसका जो है संचार करने की विधि यानी फैलने की जो विधि है, ट्रांसमिशन विधि है, ये वायु द्वारा फैलती है या बिंदु संक्रमण के थ्रू भी ये फैलती है। अगर देखा जाए इसकी इंक्यूबेशन पीरियड तो ये 2 से 4 दिन में आपको ये पता लग जाएगा और ख़त्म होने की चांसेस भी 2 से 4 दिन के अंतर्गत ही होता है। लेकिन अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण में तो यही देखने को मिलता है कि हल्का हल्का जो है ज्वर लग रहे रहते हैं, गले में जो है गलदाह व्रत और जो है गले में जख्म बन जाते हैं, ये सामान्य अव्यवस्था को दर्शाता है। गले में जो है अर्ध ठोस पदार्थ का रिसाना या नोजानिक्स को जो एक ठोस झिल्ली के रूप में बदल जाता है और इस झिल्ली से जो है वायु पथ अवरुद्ध हो जाने से मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो है बहुत घातक होता है डिपोथीरिया। अगर बात करें यहाँ पर रोकथाम एवं उपचार की
तो तुरंत औषधि उपचार आरंभ किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिशुओं को जो है डीपीटी का टीका भी लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसका उपचार ही यही है। संक्रमित शिशु को जो है थूक, कफ, मुख या नासिक स्वास्थ्य को जो है डिस्चार्ज का निपटारा उचित ढंग से किया जाना चाहिए, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। डॉक्टरी देखरेख में जो है एंटीबायोटिक दवाई दी जानी आवश्यक हो जाता है, और संक्रमित शिशु को जो है अलग रखना भी चाहिए, जिससे कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ बात रख दिया। उसके पश्चात दोस्तों हमारा है कुष्ठ रोग। देखिए, लेप्रोसिस जो थी पहले के समय में बहुत घातक बीमारी मानी जाती थी। लेप्रोसिस होती भी बहुत घातक बीमारी ही है, क्योंकि इसमें दो कोई राय है नहीं। अगर इसका हम रोगजनक की बात करें तो यह जो है एक जीवाणु बैक्टीरियम्स यानी माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री से ये फैलता है। अगर इसके संचार की विधि देखें तो लंबी अवधि तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहना नासिका स्वास्थ्य यानी पारिवारिक संपर्क के लिए सर्वाधिक संक्रमण पैदा करता है ये। और देखा जाए इसकी जो अवधि है तो 1 से 5 वर्ष जो है देखने में लग सकता है। ये छोटे छोटे रूपों में जो है धीरे धीरे ये कुष्ठ रोग जो है उभरती है, जिसका जो है इंग्लिश में हम लेप्रोसिस भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर लक्षण की बात करें तो आपको पता ही है कि त्वचा प्रभावित हो जाती है, यानी त्वचा पर सबसे बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। कई जगहों पर ये भी देखने को मिला है कि जो इसके स्किन होते हैं वो झड़ झड़ के गिरने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो प्रभाव इसको त्वचा पर भी पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि हम इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाएँ। कहते गांठों का जो है ब्रश में अल्सर का ये बन जाना भी इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। अंगुलियों एवं अंगूठों में जो है मुरक्खा यानी स्केब का विकृतियाँ आ जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि अंगुलियाँ हो, अंगूठे हो, उनमें जो है विकृतियाँ आ जाती है, सर के गलने लग जाती है। तो ये बहुत काफ़ी घातक बीमारी होती है। संक्रमित भागों का जो संवेदनशील हो जाना, जहाँ भी संक्रमित ये फैलता है वो अंग जो है काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण जो है देखने को मिलता है। और कहा जाए तो लेप्रोसिस बीमारी बहुत घातक भी होता है, जिसमें देखने में भी बहुत गंदा और भद्दा नज़र आता है। अगर बात करें लेप्रोसिस के उपचार की तो रोकथाम एवं उपचार जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। ठीक है, बच्चों को जो कुष्ठ से पीड़ित माता पिता से दूर रखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को अगर माता पिता का लेप्रोसिस है तो बच्चों को जो है कुछ समय के लिए दूर रखना है, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक रखना जरूरी होता है, तो बच्चों को भी होने के चांसेस ये बढ़ जाता है। अगर कुछ औषधि इस रोग को जो है बढ़ने या फैलने से रोक सकती है, उस औषधि का उपयोग करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रख दिया। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर ये आती है कि हम इन बीमारियों के बारे में हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने बीमारियों के बारे में जान लिया ना, समझ लिया कि ये फैलती कैसे, इसका कारण क्या बनता है, कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है, तो आप जो हो आधे से अधिक आप स्वयं ही डॉक्टर बन जाते हो, और आपको कई बीमारी से आपको स्वयं ही अपने बॉडी को रक्षा कर सकते हो। कहते हैं आज के समय में जो है बच्चों की इन सब बातों की नॉलेज नहीं रहती, कौन बीमारी कैसे स्प्रेड करती है, कैसे फैलता है, क्या इसका एजेंट होती है, और इसका जो है क्या उपचार हो सकता है, कौन सा जो है हम भोज्य पदार्थ शामिल करें अपने आहार में, इस बीमारी से हम बच सकें। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब जितना हो सके भोजन आप जो भी आपके घर में बनता है उसको जो है बड़े चाव से खाओ, बहुत सुचारू रूप से खाओ और बहुत ही अच्छे तरीके से खाओ। अगर ऐसा आप करते हो तो अब लाखों बीमारी को जो है टॉलरेट कर सकोगे, बहुत लाखों बीमारी से जो है कभी आपको जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो ये बात आपको समझना भी है और सोचना भी है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीज कॉजिंग बाय द प्रोटोजोआ। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर टॉपिक, द डिसीज कॉजिंग बाय द प्रोटोजोआ. I have preview discussed for the bacteria and the virus. The here disease are causing by the protozoa. The first disease is come here is a malaria. Malaria is a common disease for the India. There malaria is there. Pathogen has the malaria parasite. Different species of Plasmodium. There is a different species of Plasmodium is causing by the malaria. There is a pathogen is a malaria parasite, and the mode of transmission here by bite of female Anopheles mosquito. There is a female Anopheles mosquito are mode of transmissions, and there is incubation period is a approximately 12 day. 12 days is incubation period here. But the next here are symptoms. The symptom here is a headache, nauseous, and the muscular pain. There is a main symptom of muscular pain and the headache, and the symptom also is a feeling of chillness and shiverings and the flowing by the fever, which become a normal along with the sweating after some time. There is a different conditions and the feelings of the chilling and shiverings and there are sweat after some time. There are very different types of symptom here, and the patient become a weak and anemic. There is a main symptom, they are weak and anemics, and if
not be treated properly, secondary complications may be lead to be death. That is the most important here. If not be treated properly, is a secondary complication may be lead to the death. And the hair prevention and cure here. The here is a prevention called the fitting of double door window. There is a first here fitting of double door windows with the jali and the wire means in the house and prevent entry of mosquitoes because there is a causing by the mosquito of female anopheles. And there is and the use of mosquito net and mosquito repellent and the no water should be allowed to collect in the ditch and other open space prevent a mosquito breeding and the sprinkling of the kerosene oil in the ditch is other open space where water get collected. And the next is the anti-malaria drugs to be taken. There is the most important prevention and cure here. The next it is a ambrosis. Ambrosis is a ambrosis densantrix. There is a pathogen is a Entamoeba histolytica. There is a Entamoeba histolytica is a pathogen. There is ambrosis here, Entamoeba histolytica, and mode of transmission is a contaminated food and the water. There is a most important here symptom. There is a formation of ulcer in the intestine and the feeling of abdominal pain and nausea and the acute diarrhea and the mucous stool. There is the main symptom of malaria and the prevention occur here. The proper sanitation should be maintained and vegetable and fruit must be properly washed before eating and antibiotics may be given to be is a patients. यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है हमने बैक्टीरियल के बारे में पढ़ा था, वायरस के बारे में पढ़ा था, जो कि काफ़ी हमने पढ़ा और जाना भी और इसके इंपॉर्टेंस को भी समझा। अब हमारा आ गया है प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए इसमें सबसे पहला तो आता है मलेरिया। मलेरिया जो है कई मायने में जो है आपको पता ही है कि हर एक इंडियन व्यक्ति जो है इसे सामना करता ही करता है, क्योंकि मलेरिया जो है आम फैलने वाला बीमारी जो है इंडिया में है। और जनरली कहा जाए तो ये हमारी गलतियों की वजह से ही फैलता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कहीं भी कूलर हो, कहीं पानी का टायर हो, कहीं नाले हो, नालियाँ हो, वहाँ पानी जो होता है जमा हुआ रहता है और इसकी वजह से जो है इसके जो है एजेंट को जो है पनपने का सबसे अच्छा जो है सोर्स मिल जाता है। तो ये बीमारी भी जो है हमें बहुत नुकसान और बहुत परेशान भी करता है। ये जनरली आपने देखा भी होगा। कहते हैं अगर मलेरिया की बात करें तो इसका जो है रोगजनक जो है मलेरिया परजीवी होती है, जिसको हम प्लाज्मोडियम्स कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम की बहुत से जो स्पीसीज़ हैं इसके कारक बनते हैं। अगर देखा जाए संचार की विधि जो फैलता है वो मादा मच्छर जो है एनोफिलीज मच्छर काटने की वजह से होता है, यानी मादा मच्छर काटने की वजह से जो है ये फैलती है। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो ये 12 दिन में जो है आपको दिखने लग जाएगा। अगर बात करें लक्षण का तो इसमें लक्षण तो यही दिखेगा कि सर दर्द, मिचली, उबकाव एवं पेशियों में दर्द। देखिए सबसे बड़ा इसका कारण यही होता है कि पेशियों में जो है काफ़ी दर्द होता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष रहा। कहते हैं ठिठुरना और कांपना, यानी शिवरिंग और जो है आपको जो है काफ़ी फीलिंग हो, चिल्लिंग फीलिंग होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना कि अगर आप कपकपी आती है तो इसका मतलब है कहीं हद तक आपको मलेरिया का लक्षण दिख रहा है। अनुभव करना, उसके बाद ज्वार आ जाना। देखिए पहले तो आपको बहुत ठंड लगेगा, ठंड लगने के बाद आपको बुखार आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये जो है मलेरिया के लक्षण दिख रहा है। वह पसीने के साथ कुछ समय बाद ज्वार का सामान्य हो जाना। देखिए कहते हैं ये बड़ा अजीब बीमारी होती है, कभी आपको ठंड लगेगा तो बुखार चढ़ जाएगी और सडनली क्या होगा, शरीर से पसीने आने लग जाएगा। तो ये बीमारी जो है अपने आप में ही अलग है, कोई भी बीमारी में ऐसा कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। आप भी थोड़ा समझ के जो है अपना खुद का जो है प्रोटेक्शन कर सकते हो बॉडी की। अगर जो है कपकपी लग के, ठंड लग के अगर आपको बुखार होता है और कुछ समय के बाद बुखार उतर भी जाता है, ठीक है, और आपको पसीने आने लग जाते हैं, तो समझ जाना कि ये जो है मलेरिया का लक्षण आपको दिख रहा है। अगर देखा जाए इसमें क्या होता है तो रोगी कमज़ोर एवं रक्त की पीड़िता हो जाता है। तो जनरली सी बात है, बुखार चढ़ना उतरना तो है कमज़ोर के लक्षण तो दिखेगा ही दिखेगा। यदि कहते हैं सही प्रकार उपचार न किया जाए तो द्वितीयक जटिलता के कारण जो है मृत्यु भी हो जाता है, यानी दूसरे स्टेज में जो है व्यक्ति की मृत्यु भी जाती है। इसलिए समय रहते जो है इस बीमारी का जो है रख रखाव कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है।
अगर बात करें इसका रोकथाम एवं उपचार की, तो यही बात है जनरली जो आप लोग करते हो कि दोहरी जालीदार दरवाजे जो है खिड़कियाँ, ताकि मच्छर का प्रवेश को रोका जा सके। यानी जितना आप मादा मच्छर एनोफिलीज को रोकोगे उतना जो है आपको प्रोटेक्शन बना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये बीमारी होने का चांसेस भी 100% बन जाता है। मच्छरदानी उपयोग कीजिए व मच्छर प्रत्याकर्षक दूर भगाने का प्रयोग कीजिए। जैसे बहुत से आपको पता है ऑल आउट होती है, बहुत से ऐसे हैं जिसका आप उपयोग करके जो है आप मच्छर को भगा सकते हो। लेकिन क्या करें, आजकल जो है बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ भी किया जाता है, मच्छर जो है उसके प्रति जो प्रतिरक्षा क्षमता भी विकसित हो गई है। तो आज जितना भी कोयल वोयल जला लो, इसका कोई प्रभाव मच्छरों पर भी देखने को नहीं मिलता है। तभी तो देखते हैं आजकल बहुत ही केमिकल युक्त जो है पदार्थों का यूज़ किया जाने लग गया है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर देखा जाए गड्ढे अन्य खुली जगहों पर पानी एकत्र न होने दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगा, जिससे मच्छरों का पैदा होना बंद किया जा सके। गड्ढे व अन्य पानी एकत्र होने वाले स्थान पर जो है मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए और मलेरिया रोधी दवाइयों का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक हमारे समक्ष आया है अम्बिता या अम्बिरूबनता, जिसे हम एम्बोसिस भी कहते हैं। एम्बोसिस जो है डायसेंट्रिक यानी एम्बोबिक्स डायसेंट्रिक की वजह से है ये, ठीक है। इसका रोगजनक भी यही होता है एंटोअमीबा हिस्टोलेटिका। एंटोअमीबा हिस्टोलेटिका जो है इसका रोगजनक है। अगर बात करें संचार की विधि, तो ये दूषित भोजन एवं जल से ये बहुत आसानी से फैल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मेन कारण भोजन और जल जो है बीमारी का सबसे बड़ा कारण बना है। हमारा देश में अगर बीमारी इतना अधिक फैल रहा है तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है जल दूषित जल है और भोजन गंदा भोजन है, क्योंकि ये चीज़ें जो है आम देखने को मिल जाता है। अब देखिए अच्छा भोजन व्यक्ति खाएगा कैसे, जब आए दिन जो है इसका रेट बढ़ता ही चला जाएगा। आए दिन टीवी पे यही बहस चलती रहती कि रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, लेकिन कोई उपाय ही नहीं सोचा जा रहा है। तो अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? गंदे गंदे चीज़ आप मार्केट से लेके आओगे, सस्ते सस्ते चीज़, तो वो तो 100% जो है इन बीमारियों को जो है निमंत्रण देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात किया जाए जल की, तो आपको पता ही है कि जल तो इतना फ्री सरकार ने कर दिया है कि इसकी मेंटेनेंस क्षमता ही अब ख़त्म हो गया है। लोग मेंटेनेंस करना ही भूल गए हैं, जिसकी वजह से जल की इतनी कमी हो गई है और दूषित जल हमें पीने में मजबूर भी हम हो गए हैं। तो कहते हैं कई हद तक जो है हम लोग खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और दूसरे व्यक्ति जो है हमारे मूर्खता का जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर लक्षण की, तो लक्षण तो आपको पता है कि इसमें जो है आंतों में प्रवण का निर्माण होगा, अल्सर आंतों में बनने लग जाएगा, पेट में दर्द और मिचली उबकाऊ आने लग जाता है और तीव्र दस्त और मल में श्लेष्मा आती है। यानी जो मल जो निकलेगा उसमें श्लेष्मा की मात्रा रहेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि जो है अमीबा हिस्टोलेटिका का जो है डिसीज़ आपको कॉजिंग हो चुकी है। अगर रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो उचित स्वास्थ्य बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं तरकारी एवं फलों को खाने से पहले भली भांति धोना चाहिए। देखिए यहाँ तरकारी लिखा हुआ है, ये वर्ड आप कंफ्यूज मत होना। तरकारी का मतलब यहाँ पर होता है सब्जियाँ, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल भाषा में लिया गया, संस्कृत वर्ड में तरकारी वर्ड लिखा गया, लेकिन ये सब्जियों की बात कर रहा है। सब्जी एवं फलों को जो है खाने से पहले भली भांति धो लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं भी आप आते हो बाज़ार से खाना ऐसे ही बनाने लग जाते हो। आजकल मैंने देखा है गृहिणी भी ऐसे ही कार्य करती है कि आजकल इन चीज़ को मेंटेनेंस नहीं करती है, लाती है बाज़ार से भोजन को बिना धोए हुए काटने लग जाती है। तो इन बातों पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने ही परिवार को जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो। तो इसमें आपको जागरूक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए भागम भाग की दुनिया में नहीं पहुँची है। कहते हैं अगर आपके बच्चे अगर घर में स्वस्थ रहेंगे ना तो आप जाने कितने पैसे बचा लोगे, ठीक है। आज कहते हैं आज पुरुष और महिलाएं दोनों काम में लगी हुई है, काम कर रही है। तो कहते हैं खाना पीना और बच्चों के देखभाल में जो है कोई किसी का मेंटेनेंस नहीं चल रहा है। तो क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो भी मर्जी होता है बनाते हैं, फटाफट करते हैं और ऑफिस के दौड़ जाते हैं। लेकिन इनके जो है स्वास्थ्य इनका पीछे रह जाता है। और स्वास्थ्य पीछे रहने से वजह से क्या होगा, आप जितना कमाते नहीं हो उतना आपको गंवाना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सोचिए इस बात पे और गंभीरता लेना है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी अपनी विवेकता है, इसमें किसी के दूसरे की बातें नहीं सुनने की आपकी आवश्यकता है। कहते हैं इसे अगर उपचार की बात किया जाए तो उपचार तो यही है कि उचित स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए, ठीक है, और जो है रोगाणु के प्रति जैविक और दवाइयाँ प्रदान किए जाने की ज़रूरी होती है। यानी हम इसमें एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखती है।
The next here is the most important topic, disease causing by is a bomb. There is a disease causing by the bomb, helminth. Helminth, there is the disease causing by the bomb. The first disease is here, filariasis. Filariasis is a pathogen of the filaria bomb, is Viscorius bancroft. And the mode of transmission here, bite of mosquito. There is a bite of mosquito, Aedes as a cause. There is two types of mosquito bite. There is a causing of filariasis. And the filariasis is a symptom. There is a fever, collection of the endothelial cells, metabolized of wall of lymphatic vessels, and swelling of take place in content part of body like a legs, breast, and scrotum, and swelling of the leg which appear as a leg of elephant. There is a legs of elephant. So this disease is also called to elephantiasis. Elephantiasis is also called to filariasis disease. So here show the patient is suffering for the elephantiasis. There is leg is the elephant leg size. There is a call to elephantiasis on disease. The next is the prevention and call. There is a mesh door and window in the used to check of entry of mosquito. Is the first important things here. And the water collected in the tank or other articles should be properly covered. And the sprinkling of the kerosene in the dachis and drugs may be administered. तो बात यहाँ पर किया जाए तो कृमियों यानी हेलमिंथ्स द्वारा उत्पन्न रोग, देखिए ये जो होता है कृमियों द्वारा उत्पन्न रोग होता है, हेलमिंथ्स कहते हैं इसको जो है फिलारिया रोग भी कहते हैं। फिलारिया रोग होती है जिसे फिल पाँव भी कहते हैं या फिलारोसिस भी कहते हैं। तो ये बीमारी कई नाम है लेकिन इसका जो है लक्षण क्लियर दिखता है। अगर देखा जाए इसके रोग जनक के बारे में तो ये जो है फिलारिया कृमि की वजह से ये बीमारी काफ़ी फैलता है और इसको जो है बुशरेफ या ब्रोफाइटस यानी ब्रोकोलियोफाइटस संचार की विधि से ये फैलता है। अगर बात करें इंडीज एवं क्लोरोसिस मच्छरों काटने से ये जो है एडीज और जो क्लोरेक्स मच्छर काटने की वजह से होता है, तो ये बीमारी काफ़ी घातक भी होता है। इस बीमारी को जो है दूसरा नाम जो है फिल पाँव भी कहा जाता है यानी एलिफेंथेसिस भी कहा जाता है यानी हाथी की तरह पैर। आप जैसे चित्र में भी देख सकते हो कि जो एक व्यक्ति है उसको देखिए किस इस मच्छर काटने की वजह से जो है एलिफेंथेसिस यानी फिल पाँव जो है पीड़ित व्यक्ति यहाँ नजर आएगा। तो ये बीमारी बहुत घातक भी होता है और बहुत भद्दा भी होता है और इसको जो है मस्किटो से बचना ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज बात रखता है। अगर बात करें इसके लक्षण के तो आपको पता है कि जब ये बीमारी होती है तो सबसे अधिक तो ज्वार आ जाती है यानी बुखार लगता रहता है। कहते हैं लसिका वाहिकाओं में भित्ति में जो है अंतकाला कोशिकाएं उपचारित का संग्रहित हो जाता है यानी मेटाबोलाइटिस हो जाती है यहाँ पर लसिकाओं में, जहाँ पर लसिका वाहिका होती है। शरीर के कुछ भाग जैसे टांग, छातियाँ, अंडकोश आदि में सूजन आ जाती हैं। देखिए इसमें जो है कहते हैं यहाँ पर अगर देखो टेस्टिस में भी सूजन आ जाती है और टांगों में भी और छातियों में भी सूजन आ जाएगा। कभी कभी देखते हो कि बड़े बड़े बंदों को जो कभी कभी होते हैं कि टांगें मोटी हो जाती है, छातियाँ में भी देखने को मिला है और अंडकोश भी बड़ा हो जाता है। अगर बात करें हम टांगों की सूजन जो हाथी के टांगों की भांति प्रतीत होती है, इस रोग को है सलीफ्त यानी सलीफ्त फूला हुआ पद मतलब पैर यानी फिर पाँव भी कहते हैं यानी एलिफेंथस के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर यहाँ बात करें हम कि इसके रोकथाम एवं जो है इसका उपचार के विषय में, तो उपचार तो आपको पता ही है कि अगर मच्छर के काटने से ये फैल रहा है तो मच्छर को हम एंट्री न करने दें तो ये सबसे बड़ा उपचार के रूप में हो सकता है। मच्छरों के प्रवेश को रोकने के लिए घर में जो है जालीदार दरवाजे और खिड़कियों का लगाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये जो है मच्छर एंट्री करेंगे और आपको बीमारी जरूर देंगे। टंकियों व अन्य प्रांतों में संग्रहित जल को जो है भली भांति ढका होना चाहिए और जो है खुले में नहीं रखना चाहिए। जहाँ भी पानी आपको दिखे वहाँ पर या तो कुछ ना कुछ आप डाल दो। गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़काव करने से भी जो है इस बीमारी से बचा जा सकता है और दवाई भी दी जा सकती है। देखिए इसका इलाज भी होता है तो दवाई भी इसको दिया जा सकता है। कहते हैं अगर बहुत से जो है बायोजैविक्स जो है भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई पाउंड है, नदी है, कहीं भी है तो हम ऐसे मछलियों को रख सकते हैं जो कि उसके जीवाणुओं को खा जाए, यानी जो उसके बच्चे होते हैं जो अंडे देते हैं उसको बहुत से मछलियों को जो है इंटरेस्टिंग भोजन के रूप में होता है। तो अगर वो मच्छर अगर हम रख देते हैं, मछलियाँ उस पानी में रख देते हैं तो हो सकता है कि इस बीमारी से और भी बचा जा सके। तो क्या कहते हैं हमारे पास सब चीज़ का उपाय है फिर भी हम जो है नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते हैं।